Hello, friends, and welcome to the International Fab Talks. Fab Talks is all about learning, growing, and empowering others. When we have people across the world who are ready to help you and guide you in the right way, no matter if it is your physical health, mental health, or your spiritual well-being, we have several unsung heroes across the world. And today we are being joined by a wonderful friend joining us from Dehradun, Uttarakhand, India. He is none other than Dr. Chirag Bahuguna, who is an eye surgeon. Hello, sir, and welcome to the session. Thank you. So it's a honor and privilege to have you here with us to share your expertise and to enlighten the public about how to take care of their eyes. अपनी आंखों का कैसे हम केयर कर सकते हैं. We could learn all of that because we are very negligent. ज्यादा से ज्यादा उतना केयर नहीं लेते हैं. We take it lightly. तो आज हम सीखेंगे अपनी आंखों को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सर बताएंगे हमें. So with your permission, I shall go ahead and share your profile. But before that, I'd like to thank you so much for accepting the invitation to the International Fab Talks. Thank you. Thank you. I'm also very thankful. Thank you, sir. And thanks to Dr. Pawan Sharma as well. Thank you so much. My friends, it's really a honor and privilege when somebody accepts the invitation to the International Fab Talks for one main purpose, to educate the public, to make the public understand, to make the common man understand that yes, your mind, your body is really important to you. How one should take care of the mind and body is all about International Fab Talks. When you take care of yourself, you can take care of your family members and the society as well. So let's get to know about the profile of our special celebrity and guest. He is Dr. Chirag Bahuguna. He's completed his MBBS and MS Ophthalmology, if I'm getting that right, from Lady Hardinge Medical College, New Delhi. Fellow Cornea, Ocular Surface and Stem Cells, LV Prasad Eye Hospital, Hyderabad. Dr. Chirag Bahuguna has also worked as a senior resident in Department of Ophthalmology, if I'm getting that word right, AIIMS, Rishikesh. He has also served as consultant eye surgeon at Government District Eye Hospital, Mahatma Gandhi Shatabdi Eye Hospital, Dehradun, Uttarakhand, India. Currently, he is the director and consultant eye surgeon at Dr. Bahuguna Eye and ENT Care, Dehradun, Uttarakhand, India. Dehradun, Uttarakhand, India. And friends, we are so happy and we are gifted to have people who are ready to share their time for us, to make us aware of how we could understand the various disorders that we face with our eyes, that we come across with our sight and vision. So आज सीखेंगे. Join me. Sir, बहुत बहुत धन्यवाद sir that you've joined us today. Thank you. First of all, I'm very much thankful, and good afternoon to all the listeners for taking out time for such a busy schedule. That too, especially on a day Sunday. And thank you for the Fab Talk platform for giving me this opportunity. And what I like about the Fab Talk, that it is formally being informal, that anybody can ask and share their own experiences. And since I'm an eye surgeon, so most of my talk will be more oriented toward the eye and the disorder and how to take care of the eye. Thank you, sir. That is really the need of the hour because there are several people, बहुत सारे इतने सारे लोग हैं जो आंखों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको मालूम भी नहीं कि भाई है क्या प्रॉब्लम या प्रॉब्लम है या नहीं. तो आज पता होगा, पता हो जाएगी या पता चल जाएगी हमें कि भाई हमको प्रॉब्लम है या नहीं. अगर है तो किस तरह की ट्रीटमेंट लेनी है, कहाँ पर जानी है. Yes, sir. First of all, we'd like to ask you, how would you define yourself? Who is the real Chirag? तो आप दूसरों की नजरों में आप रोशनी लाते हैं, तो आप एक चिराग बन चुके हैं सबके लिए. तो who is the real Chirag we want to know? Yes. Thank you. As my name suggests, my name is Chirag. So from since childhood, I have seen many patients. Like I belong to hilly region of the country, and most of the people, they used to go and they have cattle in their homes. So they go to jungle to fetch the grasses, and many many women of our small town, I have seen they have a white eye. Then I used to ask कि आपकी आंख सफेद कैसे हो गई. तो वो कहते थे कि हम जंगल गए हैं, गाय के लिए घास काटने गए, घास हमारी आंख में लग गया और आंख लाल हुई और इन्फेक्शन से आंख खराब हो गई. तो मैंने ये बचपन में देखा कि बहुत लोगों की आंख खराब हो गई. तो मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे एक आई सर्जन बनना है. तो वहां से जर्नी शुरू हुई और मैं आई बिलोंग टू अ प्लेस नोन एज पौड़ी गढ़वाल.
which is a district headquarter of Garhwal region of Uttarakhand. And Pauri Garhwal is such a beautiful place from where we can see the longest part of Himalaya from our naked eye, from each and every house of Uttarakhand. और मैं इसलिए बता रहा हूँ इतना खूबसूरत है और हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और आंखें जो हमें भगवान ने दी हैं इतनी सुंदर दुनिया देखने के लिए, तो मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी आंखों पे ध्यान दें ताकि हम जो इतनी सुंदर दुनिया है उसको देख सकें। जी सर, अक्सर देखा गया कि भाई बड़े नहीं बस छोटे बच्चे भी आजकल आंखों के बीमारियों के साथ शिकार हो चुके हैं। जी जी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। हाँ थोड़े जी। जो 40s में आते हैं उनको भी तकलीफ होने लगती है। तो आप जी। इसके बारे में एक आई सर्जन होने के नाते, फर्स्ट वी स्टार्ट विद द चिल्ड्रन, ओके। as to how the children by birth or through genetics, it could be, I don't know what's that. Would you like to share that, sir? लाइक मैं कहूँ जब भी कोई घर में बच्चा पैदा हो, चाहे हमारे या किसी और के, तो फर्स्ट विजिट में ही हमें एज द चाइल्ड इज बोर्न he should be first visit to a doctor to just rule out any congenital condition he or she might be suffering to. Just congenital means जो by birth होते हैं, like in case the child is born, if he is adequate weight, if he is born at a good period of gestation, if he is born before the period of gestation, like if he is born before term, like if he is low birth weight, then there are high chances that he might have some problem in the eyes. Then for every case who is low birth weight, like any child who is born with a weight less than 2 kg, any child who is a premature birth, we should get his eye checkup done. And there are several other conditions like congenital cataract, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, वो बाय बर्थ भी हो सकता है। congenital glaucoma, काला मोतिया, वो बाय बर्थ भी हो सकता है। congenital ट्यूमर्स, ऐसे ट्यूमर हैं जो बाय बर्थ होते हैं। और कहीं हमारी आंख तिरछी तो नहीं है बाय बर्थ, या हमारी पलकें एक पलक छोटी तो नहीं है, आंख बड़ी तो नहीं है, छोटी तो नहीं है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट विजिट हमें जरूर करानी चाहिए टू रूल आउट द एनी congenital abnormality anomalies in the eye. और इसके बाद हम बच्चों की बात कहें तो हम देखते ही हैं हर किसी ने चश्मा लगाया हुआ है। देखिए मैंने भी चश्मा लगाया हुआ है, पर हम देखें आजकल जब हम अपनी इस क्लासेस में थे तो 100 में से 10 या 20 लोग चश्मा था, बट नाउ आज टुडे सिनेरियो में देख रहा हूँ कि जब मोर देन 70 to 80% लोगों की आंखों में चश्मा है आजकल के बच्चों में। तो रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम कहते हैं वो बहुत कॉमन है और बच्चों में बहुत सारी बीमारियां हैं। और आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपका जवाब देता जाऊँ। जी जी सर, जी सर। सर एक बहुत बड़ी बात हम आज शेयर करना चाहेंगे सभी के सामने। जो दिवाली के टाइम होता है ना सर, तो पटाखे जलाते हैं तो वो क्रैकर्स का जो स्पार्क है, पटाखे का स्पार्क आंखों में चली जाती है और उनकी आंख डैमेज हो जाता है, कॉर्नियाज डैमेज। तो क्या जी करेक्टिव सर्जरीज हो सकते हैं, उनकी आंख बचा सकते हैं? देखिए स्पेशली जब बच्चों भी के साथ होता है ये। बहुत होता है और दिवाली में हमेशा ही हम ये सबको सुझाव देते हैं कि वी शुड वेयर अ प्रोटेक्टिव आई गियर। हम कोई चाहे चश्मा नहीं भी है तो हमें एक चश्मा पहनने के बाद ही पटाखे छुड़ाएं। वैसे तो ना ही छुड़ाएं तो अच्छा है, फिर भी छुड़ाते हैं तो अंडर द गाइडेंस ऑफ एल्डर्स छुड़ाएं। और हमेशा पानी की बाल्टी साथ में रखें अगर जल गया। इन केस आपकी आंख में चिंगारी या चलेगी तो कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, तुरंत ही नजदीक हॉस्पिटल में आई डॉक्टर को दिखाना है और देखना है कि हमारे आंख का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। कहीं बाहर की चोट है, कहीं कॉर्निया में डैमेज तो नहीं, कॉर्नियल बर्न तो नहीं होंगे। अगर उसे तुरंत ही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो कई हद तक आंख बचाई जा सकती है और कहीं इसमें इन्फेक्शन ना हो। तो इसलिए हम ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, लोग अपने आप ही दवाई डालना शुरू कर देते। तो मैं चाहता हूँ कि फॉर गॉड सेक आप जब भी ऐसी घटना हो तो अपने नियरेस्ट आई डॉक्टर को, आई सर्जन को जरूर दिखाएं। जी सर, जी सर। बड़ों में अक्सर देखा गया और आई मीन इवन नॉट ओनली बड़ों में, even the youngsters and children also, they have this nearsightedness. So Yes. nearsightedness, what is the technical term or the medical term for it? ओके उसका नाम बता दीजिए हमें, और वो क्या होता है आम भाषा में बता दीजिए हमें। देखिए बच्चों में स्पेशली हम देखते हैं चश्मा पहना हुआ है। अगर मैं आपको एक आई का मॉडल है, आई विल ट्राई टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडल। दिस इज द मॉडल ऑफ द आई, okay, that we are seeing. So this is the part of eye which is known as cornea. This is the clear lens and this is the retina. Retina is the place from where the light which is coming from the source, like the subject which we are viewing. So most of the light come from the cornea, then they are refracted back and then it get focus in the retina. तो जो लाइट रेटिना में फोकस हो रही है उसको बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, उनको चश्मे की जरूरत नहीं है। पर ऐसे केसेस में जिनका की कॉर्निया ज्यादा स्टीप है, कॉर्नियल पावर ज्यादा है, या लेंस की पावर ज्यादा है, या आंख छोटी है, तो उनके केसेस में
लाइट यहाँ पे ही फोकस हो जाती है, रेटिना से पहले। तो ऐसे केस को हम मायोपिया कहते हैं, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, उन्हें दूर का साफ नहीं दिखाई देता। और ऐसे लोग जिनके लाइट यहाँ फोकस हो रही है, इसके पर्दे के पीछे फोकस हो रही है, उन्हें हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उन्हें निकट दृष्टि दोष होता है। ऐसा 40 साल के बाद होने लगता है कि हमें नजदीक का पढ़ने में नहीं आ रहा है। और बच्चों को हम देखते हैं कि दूर का समझ में नहीं आता, तो जिसको दूर का नहीं दिखाई देता उसे मायोपिया कहते हैं, जिनको नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और एक और कंडीशन होती है जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, जिसमें कि कर्वेचर अलग होता है, मतलब इस एक्सिस और इस एक्सिस में अलग अलग इमेज बनती है, उसे हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ये 3 मेजर कंडीशन है आँख की। सर कभी कभी आंखों से पानी भी आ जाती है, बस ऐसे बैठे बैठे जी आंखों से पानी कभी कभी आने लगती है बहुत सारे लोगों को, जी। especially when they are in the 30s 40s maybe 35 40s I feel like that। तो वहां पर किस वजह से, या कभी किताबें पढ़े जब या न्यूज़पेपर पढ़े जब, तो आंखें एक आंख से आती है दूसरी आंख से नहीं आती, कभी कभी दोनों आंखों से भी आ जाती है। जी तो ये बस किस वजह से होती है, ये आप बता सकते हो? देखिए, आँख में पानी आना इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। और इसको हमें देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। अगर हम 30-40s में हैं, 40s ऐसी एज है कि जिसमें हमें नियर की प्रॉब्लम आने लगती है, जिसे हम फ्रेश बायोपिया कहते हैं। अगर हमें चश्मे का नंबर है और हम चश्मा नहीं लगा रहे हैं, तो जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी आंखों में स्ट्रेन होगा, उस स्ट्रेन के कारण आंखों में पानी आ सकता है। दूसरा, हमें देखना है कि देर इज अ होल इन दी लिड्स, उस होल को हम पंक्टम कहते हैं। पंक्टम, उस छेद से आंसुओं की धारा जाती है और वो नाक में जाके गले में चले जाते हैं। तो हमें ये भी देखना है कहीं जहाँ से वाटर आउटलेट है, जो आंसू हमारे आंख में आते हैं और जो नेचुरल टीयर्स हैं, दे फ्लो थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट इनसाइड द लिड विच इज नोन एज लाइक नेजोलैक्रिमल सिस्टम। तो हमें देखना है कहीं वो नेजोलैक्रिमल सिस्टम तो ब्लॉक नहीं है। तो ये सब हमें अपना एक बार जरूर चेकअप कराना है कि कहीं हमें आंखों में चश्मे का नंबर तो नहीं है, कोई हमें एलर्जिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमारा वो डक्ट सिस्टम तो ब्लॉक नहीं है जहाँ से आंसू जाते हैं। तो ये सब हमें आई चेकअप के बाद ही पता लगेगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, कब एक इंसान या एक व्यक्ति कब डिसीजन लेना है कि आज मुझे डॉक्टर से जाके मिलना है, आई सर्जन से मिलना है, आई डॉक्टर से मिलना है, when he has to take the call to visit an eye doctor? ओके, दिस वेरी नाइस क्वेश्चन। तो आई आप किसी भी आई सर्जन से पूछेंगे तो वो यही जवाब देगा कि जब भी आपको मन करे आपको एक बार तो जरूर दिखाना है, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो। क्योंकि आई की ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हमें हमें होती है पर हमें पता नहीं लगता। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसे हम काला मोतिया कहते हैं, जिसे हम ग्लोकोमा भी कहते हैं। तो ग्लोकोमा इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट थीफ ऑफ साइट। इसमें धीरे 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 आंखों की रोशनी कम होने लगती है और पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि उसे काला मोतिया भी है। तो 90% ऑफ केसेस हमें तभी पता लगते हैं जब वो फर्स्ट टाइम आंख चेकअप के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ऐसे ही जा रहे थे, हमने देखा कि एक आई चेकअप करा लेते हैं, तब हमें पता लगता है कि नहीं, ये काला मोतिया हो सकता है। तो हर साल 1 या 2 बार आपको आंखों का चेकअप जरूर कराना चाहिए, चाहे आपको आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ऐसे कई कंडीशन है जिसमें आपको बार बार, जैसे शुगर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसमें आपको साल में 2 से 3 बार आंखों का चेकअप कराने आना पड़ सकता है। और जब आपको अगर ग्लोकोमा हो गया तो आपको हर 3 3 महीने में आंखों का चेकअप कराना। यस सर। तो ये ग्लैकोमा क्या है सर, कैसी होती है, आम भाषा में समझा दीजिए, मुझे भी नहीं मालूम, तो हम सभी के लिए इट विल बी वेरी यूजफुल। देखिए, 2 चीजें हैं आंखों में। एक तो सफेद मोतिया होता है, मैं इसका हेल्प लेता हूँ। देखिए, ये आई का मॉडल हो गया। जो सफेद मोतिया होता है वो हमारे आंख की लेंस की बीमारी है, जो कि हमारे आंख का लेंस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके सफेद मोतिया होता है और ये हमारे आंख का नस है जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, तो यहाँ पे काला मोतिया होता है। तो आंख की लेंस की बीमारी इस सफेद मोतिया, दैट इज कैटरेक्ट। आंख की ऑप्टिक नर्व, आंख की नस की बीमारी इस काला मोतिया। काला मोतिया अपने आप में इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीज। ग्लोकोमा इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय acquired लॉस ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर। जो हमारी आंखों की नसें हैं, नर्व फाइबर्स हैं, धीरे 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 वो सिकुड़ने लगती हैं। और वो इतना धीरे धीरे होता है कि किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि हमें काला मोतिया है। तो काला मोतिया आंखों की नस की बीमारी है जिसमें आंखों का दबाव बढ़ने से आंख की नस का ब्लड फ्लो कम हो जाता है और धीरे धीरे आंखों की नसें सिकुड़ने लगती है। तो हमारे आंखों का देखने का जो क्षेत्रफल है, देखने का दायरा है, वो सिकुड़ने लगता है। तो ये चीज है काला मोतिया। सर आप सभी के लिए एक राय दे दीजिए कि भाई अपनी आंखों को कैसे वो सुरक्षित रख सकते हैं,
कैसी रखनी है, कैसे, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर आईज एवरी सिंगल डे, बिकॉज वी आर वेरी केयरलेस अंटिल अ प्रॉब्लम जी कम्स. जब कुछ प्रॉब्लम आए तब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, नहीं तो वी जस्ट टेक एवरीथिंग लाइटली, केयर नहीं लेते हैं, बस फ्लो में ही रहते हैं हम लोग. तो व्हाट टाइप ऑफ केयर, आंखों के लिए किस तरह की केयर लेनी है? देखिए, सबको तो आंखों केयर तो लेनी है, बट इट डिपेंड ऑन द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन ऑल्सो. जैसे कि आप सपोज मोस्टली आप देखेंगे, आप लोग, हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि हम 8-8 घंटे ना एक साथ बैठे हों. जी तो उसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं कंप्यूटर पे जब हम काम करते हैं. तो हमें आधे घंटे से ज़्यादा एक साथ नहीं बैठना है. आधे घंटे बैठे और थोड़ी देर हम ब्रेक लें, फिर हम वापस काम करें. दूसरा, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, कि हम we take lot of antioxidant like green leafy vegetables. There is a specific role of vitamin A also, like carrots हैं, pumpkin है, and cottage cheese है, पनीर है, मिल्क है, सब में विटामिन ए अच्छा होता है. ये सब लेना है हमें. और हमें घर पे बैठे बैठे जरूर चेक कर लेना है, एक आंख बंद करके, कभी राइट कभी लेफ्ट, कि हमें दोनों आंखों से ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. जनरली हम बचपन में देखते नहीं है, दोनों आंख से देख रहे होते हैं, एक आंख की विजन कम होती है, हमें पता ही नहीं लगता. तो हमें एक आंख बंद करके जरूर देख लेना चाहिए कभी, कि हमें दोनों से बराबर ठीक दिखाई दे रहा है, जो रंग है हमें बराबर एक दूसरे से एक जैसे दिखाई दे रहे हैं. तो ये करना चाहिए. और कभी आंख लाल हो रही है या पानी आ रहा है या आंखों में कीचड़ सा आ रहा है, तो कभी भी मेरा ये कहना है, ओवर द काउंटर मेडिसिन आप ना लें, क्योंकि मोस्टली उसमें स्टेरॉइड वगैरह बहुत होते हैं. तो आप जरूर अपने आई डॉक्टर को दिखाइए और फिर भी कोई मेडिसिन उनसे लें. जी सर, जी सर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने कहा सर, एक आंख बंद करके एक आंख से देखे, और फिर दूसरी आंख बंद करके वो भी यू चेक आउट विच वन जी. इज क्लियरर. If you have any या problem, get yourself checked. That is very nice. It's a good exercise to for you to know या दिस इज अ your eyes. वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल टूल दैट एवरीवन कैन डू. Yes. Is there any eye exercise ऐसा कुछ है, इसके अलावा कुछ any other eye exercise? देखिए, Up, इसमें down, बहुत, ऐसा कुछ? Yes. हाँ जी, बहुत सारे इसमें आई एक्सरसाइज के लिए बहुत मिथ भी हैं. आजकल हम पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सुबह उठते हैं, आंख को रगड़ते हैं, और वो सही. आंख की एक्सरसाइज में देयर इज नोन एज पेंसिल पुशअप थेरेपी. पेंसिल पुशअप थेरेपी ऐसे होता है जैसे कि हम Yes. दूर देखते हैं और फिर हम अपनी पेन का टिप को देखते हैं, पेन का टिप हम पास लाते हैं, अब हमें लगता है यहाँ पे डबल हो रहा है, तो उसे हम सिंगल करने की कोशिश करते हैं, तो 5-10 सेकंड उसको देखते हैं और फिर वापस करते हैं. तो हम दूर से पेंसिल लाते हैं, उसके टिप को देखते हैं, सपोज यहाँ पे टिप डबल सा हो रहा है, तो उसको हम सिंगल करने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम ये एक्सरसाइज भी करें तो इट इज मोर देन इनफ. और बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं. Ji sir, thank you very much. You've shared lots of important information. Sir, there are so many youngsters out there, and all of these people, or everyone, including me, I also have specs, a reading glass. तो मुझे नहीं पहनना है, ओके. तो ऐसे लोगों को क्या कर, कि व्हाट इज द देखिए, हल है या? ओके, यस. सपोज इफ यू हैव ग्लासेस, ग्लासेस मे बी फॉर नियर, मे बी फॉर डिस्टेंस. अगर somebody don't want to wear glasses, so there are specific contact lenses that we can prescribe to them. मल्टीफोकल कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं आज की डेट में हमारे पास, डिस्टेंस के लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं, नियर के लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं, तो वो हम यूज कर सकते हैं. देन अगेन दूसरा, अगर हमें चश्मा ही उतारना है, तो देयर आर सम सर्जरीज अवेलेबल फॉर देम, फॉर दीज पेशेंट्स. और दूर के लिए है कि नजदीक के लिए है, तो ऐसे हम सर्जिकल ऑप्शन है उनका चश्मा उतारने का. पर हमें देखना है कि वो सर्जरी क्या वाकई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जस्ट वी आर गेटिंग रीड ऑफ ग्लासेस फॉर अ कॉस्मेटिक पर्पस. तो ये सब भी हमें देखना है. और आर वी फिट फॉर दोज सर्जरीज और नॉट फिट, तो ये हमें पहले डॉक्टर से राय लेनी है कि भाई वो हमें चश्मा उतारना है, वो उसका क्या कारण है. अगर कोई प्रोफेशनल नीड है देन इट्स ओके. लाइक लोग आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में पायलट्स बनते हैं, तो उनके लिए चश्मा उतारने के सर्जरीज ऑलमोस्ट नेसेसरी फॉर दोज पर्सन. पर दोज इनके लिए बहुत कम नंबर है, तो जनरली हम प्रिस्क्राइब नहीं करते कि आप चश्मा उतारने की सर्जरी करें. जैसे आपने कहा सर, सर्जरी एक वो नंबर है, नंबर जो ग्लासेस के हैं, रीडिंग ग्लासेस, जी. तो टिल व्हाट number they should wait and then go in for a surgery? Because all of them who are now just hitting the glasses, like when it is 0.50, then 0.75, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगी ना, तो किस हद तक वेट करके then you people suggest for the doctor suggest for a surgery, or maybe देखिए, जनरली हम, देखिए, रिमूवल ऑफ ग्लासेस जनरली कंसिडर्ड एज अ कॉस्मेटिक सर्जरी, जनरली कि yes. कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है. बट इसके बहुत सारे अपने रोल भी हैं. लाइक किसी का -20 का नंबर है,
इतना मोटा चश्मा है तो उसे डे टू डे एक्टिविटी करने में दिक्कत होती है, माइनस इतना हैवी चश्मा पहना है तो उसे छोटी चीज दिखे, छोटा दिखता है। और दे आर इतने हाई ग्लासेस में, दे आर सो मेनी एबरेशन विच उन्होंने स्पेरिकल एबरेशन वो भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का चश्मा उतारना इज अ गुड वे टू गिव देम अ गुड रिहेबिलिटेशन। एंड किसी की प्रोफेशन नीड हो सकती है भाई, किसी को एक्टिंग करनी है, किसी को मॉडल बनना है, किसी को आर्मी एयरफोर्स में जाना है, लाइक इन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एंड इन साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे तो अलाउ किया गया है बिल्कुल कि अगर आपको चश्मा उतारने की सर्जरी दैट इज अलाउड एंड रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, कि अगर आपको आर्मी एयरफोर्स ऐसे उसमें जाना है तो आप चश्मा उतार सकते हैं। हालांकि इंडिया में हम इतना वो नहीं कहते, जैसे बहुत कम नंबर है, -0.25, -1, -2, जनरली हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि दैट यू गो अंडरगो सर्जरी फॉर द रिमूवल ऑफ ग्लासेस अनलेस देयर इज अ प्रोफेशनल लीड। बट जिनका नंबर -6, -8 से ज्यादा है, -20 तक भी हो जाता है लोगों का नंबर कई बार, तो ऐसे लोगों को they can go for surgery, and there are various laser based surgery and lens based surgery that they can undergo to remove their glasses. जी sir, जी sir. Yes. So friends, if you have any questions, you could post to us. We will give it a thought and share it with our special celebrity and guest. He is Dr. Chirag Bahuguna, an eye surgeon who has all the technical knowledge and as well as the expertise and experience as to how you should take care of your eyes. If you have any problem with your eyes, you could get connected to our special celebrity and guest. He is a wonderful eye surgeon because he's answering so well. Whatever question I'm trying to put out, he's having an answer to that. This shows that he's much experienced. Dear sir, there's another question in my mind. Here, the question is about Okay. eye donation. Yes. As a surgeon, eye surgeon, have you been in that space where you even carried out, eye donation surgeries as well? Have you been into that phase? And or do you have Yeah, any information where others they want to pledge their eyes, eye donate करना चाहेंगे? जी जी। के बारे में कुछ कहना चाहिए सर? देखिए, आई डोनेशन तो बहुत ही अच्छी चीज है, एवरीवन शुड गेट द आई डोनेटेड। आई डोनेशन के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं, लाइक रोटरी क्लब होता है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में यहाँ पे एम्स है, तो एम्स में आई बैंक है। एनी प्लेस विच हैज अ आई हॉस्पिटल एंड दे हैव अ आई बैंक, तो पर्सन कैन गो देयर, और उनके नंबर्स भी होते हैं, दे कैन डायल देयर नंबर, डायल कर सकते हैं और पहले से ही प्लेस ले सकते हैं। तो आई डोनेशन जनरली डेथ के बाद ही होता है। तो आप आई, जैसे आपका पास आई प्लेज है तो आपको नेक्स्ट हमारा जो किन है या आपके नियरेस्ट कोई रिलेटिव है, उनको आपको बता के रखना है कि आपने आई प्लेज किया हुआ है, डोनेशन का प्लेज किया हुआ है। जब कभी भी डेथ हो तो उसके किन को पता होता है कि आपने आई प्लेज का डोनेशन किया था, और फिर वो उनको फोन करते हैं, वहां से आई बैंक से ऑथराइज पर्सन आते हैं, उनका आई का एक छोटा सा भाग होता है कॉर्निया, उसको निकाल लेते हैं। तो वो एनीबडी हु हैज डाइड ऑफ एनी डिजीज दे कैन डोनेट हिज आई, बट इसमें बहुत सारी कंडीशंस भी हैं, उस हम बाद में देखेंगे। एनीबडी कैन डोनेट देयर आईज इवन दे हैव गेट गॉट देयर आई ऑपरेटेड, लाइक कैटरेक्ट के लिए ऑपरेशन हुआ था या किसी और चीज के लिए, तो वो अपनी आई डोनेट कर। आई डोनेट में केवल एक ही हिस्सा कॉर्निया ही अभी ट्रांसप्लांट किया जाता है, पर हाँ, लोगों को ये मिथ भी है कि पूरी आंख की किसी की ट्रांसप्लांट की जाती है, ऐसा नहीं होता। और इसमें कोई फेस का डिसफिगरमेंट भी नहीं होता। जनरली लोग डरते हैं कि भाई डेड बॉडी है और आंख निकाल लेंगे तो फेस अच्छा नहीं दिखाई देगा, तो ऐसा नहीं होता। आई, उसमें केवल आई का कॉर्निया आगे का हिस्सा होता है, काली पुतली, उसी को निकाला जाता है, तो इसमें कोई डिसफिगरमेंट भी नहीं होता। हाँ, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी अगर डेथ होती है और हमें पता है भाई इन्होंने आई डोनेशन के लिए प्लेज किया हुआ है, तो जितना जल्दी हो, एटलीस्ट विद इन 6 आवर्स अगर आई डोनेट हो जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और जब डेड बॉडी है तो उसको खुद ही हमें पलके बंद कर लेनी चाहिए, उसकी आंखों जो काली पुतली को ड्राई नहीं होने देना चाहिए। और बहुत अगर गर्मियों का मौसम है तो हमें डेड बॉडी को एक ठंडी जगह पे रखना है, आंख को उसको बंद कर लेना है और तुरंत ही उस नंबर पे फोन करना है, ताकि वो जो आई पर्सनल्स हैं या आई डॉक्टर आए और टेक्निकल टीम आए और आई का कॉर्निया ले जाए। यस सर, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग, थैंक यू। आपने कहा 6 आवर्स के अंदर ही अंदर आके ये काम कर देनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन जी ये जी है सर, हमारे क्वेश्चन, जो छोटे बच्चे हैं जो इस दुनिया छोड़ के चले गए, दे हैव लेफ्ट दिस वर्ल्ड, जी तो जी जी। उनके भी आंखें डोनेशन के लिए एप्लीकेबल है? नहीं लिटिल नहीं, देखिए डोनेशन के लिए वी हैव टू टेक अ प्लेज, जनरली एडल्ट्स की होती हैं, दोज हु कैन टेक अ प्लेज टू डोनेट देयर आईज।
ऐसे ही हम अगर कोई घर में सपोज प्लेज भी ली है और घर वाले मना कर देते हैं, देन वी कैन नॉट टेक द आइज। वेरी ट्रू। उन्हें प्लेज ले सकते हैं। अगर प्लेज नहीं भी ली है, अगर घर वाले फोन करें कि इनकी आंखें ले जाओ, सपोज बहुत छोटा कॉर्निया है, अगर पूरी तरह से डेवलप नहीं भी हुआ है, तो वी कैन यूज दैट आई फॉर एजुकेशनल पर्पज, फॉर सर्जरी एंड फॉर टीचिंग द अदर रेजिडेंट ऑल्सो, दैट कैन ऑल्सो बी डन। Excellent, excellent. That's really nice. My dear friends, there's a beautiful message over here, which I would like to share from the International Fab Talks. Let us all pledge our eyes such that we could enable the other people to see after we are gone. Let us live through them. Let them see this beautiful world. Sir, अभी एक प्रॉब्लम जो हमने बार बार फेस करी है, कंजंक्टिवाइटिस। जी इतनी तकलीफ होती है, अगर एक को लगा तो दूसरे डर जाते कि भाई ऑटोमेटिकली उनको भी आ जाता है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? चाहे हम कहाँ पर, व्हेन वी गो टू शॉपिंग, जहाँ मार्केट में गए या कोई मॉल में गए, द शॉपकीपर उनको है तो हम उनसे भी डरते कि भाई इफ दे वेयर जी, दोस स्पेक्स, तो दिस दो इज ग्लास। कुड यू शेयर समथिंग? जी जी, देखिए आई जो है, आई इज कवर्ड बाय a layer which is known as conjunctiva, उसका infection is known as conjunctivitis. तो that can be viral, that can be bacterial also. तो इन conjunctivitis जनरली क्या होता है कि आंखों में हमारे करकराहट होने लगती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होने लगता है, आंख लाल हो जाती है, और हम जनरली देखते हैं जब हम सुबह सो के उठते हैं तो आंख में येलो येलो डिस्चार्ज आने लगता है, पुरुलेंट डिस्चार्ज हम जिसे कहते हैं। तो दैट इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। इस कंजक्टिवाइटिस में क्या करना है हमें कि हमें हैंड अपने क्लीन रखने। जनरली लोग बोलते हैं कि हमने किसी को आंख लाल थी, उन्हें कंजक्टिवाइटिस था, उनको देखा हमें कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो ऐसे जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली इट गेट ट्रांसमिटेड थ्रू अ रूट नोन एज फोमाइट। जैसे आपने आंखों में हाथ लगाया और आपने उसको हाथ टच कर लिया, या उन्होंने कहीं और टच किया था, आपने वो टच कर लिया, फिर आपकी आंख में टच हो गया, देन इट गेट ट्रांसमिटेड। ऐसे देखने से कंजक्टिवाइटिस नहीं होता। ब्लैक गॉगल्स या डार्क गॉगल्स हम इसलिए देते हैं कि बार बार उनका हाथ आंख में ना जाए। अगर जैसे बार बार क्योंकि आंख में इरिटेशन होती है, देन पीपल गेट अ हैबिट ऑफ रबिंग देयर आईज, देन the infection part, the virus or bacteria get transmitted to their hand, then they shake their hands. There are so many things that these virus and bacteria get transferred into. Just देखने से ही नहीं होता, जनरली आंख में फोमाइट आ जाते हैं, वो हम कहीं टच कर लेते हैं, उसका हम सपोज उसका टॉवल यूज कर लिया या उनका उसी बेड में यूज कर लिया हमने, तो ये ऐसे फैलता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि डर लगा रहता, मैंने जब रिसेंटली आई थिंक 2 months जी बैक जहाँ पर हम रह रहे, तो वो स्टार्ट हुआ था हमारे जगह में, तो एकदम किसी को देखे तो डर, एकदम डर हमारे मन में जी क्या है कि देखने से भी हो जाएगा हमको, लेकिन तो जी जी, डर के हम लोग मूव आउट हो जाते हैं उस जगह से। सो इसमें थैंक यू। इम्पोर्टेंट जी इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं कि ये कंजक्टिवाइटिस है कि कुछ और चीज है, क्योंकि आंखों में लाल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कंजक्टिवाइटिस ही ऐसा कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है जिसमें आंख लाल हो सकती है। जी और जनरली हम देखते हैं लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं। जैसे अभी हमारे इंडिया में ही बहुत आपने देखा था, बाढ़ आ गई थी 2 3 4 महीने पहले, और बहुत सारा एपिडेमिक हो गया था कंजक्टिवाइटिस का। तो उसमें लोगों ने अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन किया है, लोगों ने स्टेरॉइड डाल दिए हैं, तो कंजक्टिवाइटिस से उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया, किसी को कॉर्नियल अल्सर हो गया, कई लोगों ने अपनी आंख लूज भी कर दी है। तो ये जब भी ऐसा ऐसा हो तो आप डॉक्टर को ही दिखाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये मेरा मैसेज है, मैं इसे बार बार दोहरा रहा हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आपने बहुत अच्छा कहा सर। My dear friends, don't take over the counter medication, because it is your eyes, the most important part of your body. I mean, one of the most important parts, because without your eyes, you can't see anything. Of course, you can close your eyes and you can eat, but still, you need to see the world. You need to, you know, enjoy this beautiful world which God has created. So take care of your eyes. Visit an eye surgeon, visit an eye doctor, where you can really get the benefits of getting the right kind of treatment and right kind of suggestions how to improve your eyesight and take care of it. सर, इसके अलावा और कितने तरह की बीमारी है आंखों को लेके, apart from all of which we have shared now? देखिए Is there सबसे anything else? Yes. ओके, देखिए बहुत सारी बीमारी है आंखों में। सबसे इंपॉर्टेंट है अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, विच इज मोस्ट कॉमन। अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, जिनको चश्मे का नंबर है पर पता नहीं, तो सबसे पहला तो यही है। उसके बाद देयर आर सो मेनी कंडीशन विच आर कंजेनिटल, और सम ऑफ देम विच आर एक्वायर्ड, और सम ऑफ देम विच आर एज रिलेटेड। तो हम देखते हैं आंखों में सबसे पहले है, हमारी आंखों में पलकें हैं। तो किसी किसी की पलक नीचे गिरी रहती है, उसे हम टोसिस कहते हैं। किसी की पलक हम देखते हैं जब ओल्ड एज आती है तो पलक बाहर की तरफ मुड़ जाती है, उसे हम एक्ट्रोपियन कहते हैं। किसी की पलक अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो उन्हें इंट्रोपियन कहते हैं। फिर काली पुतली में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं।
कॉर्निया में कहीं कॉर्निया में किसी को अल्सर तो नहीं है, किसी को इन्फेक्शन तो नहीं है, या एक कंडीशन होती है जिसमें लोग बचपन में बहुत खुजली करने की आदत होती है बच्चों को, उनकी कॉर्निया रगड़ते रहते हैं, कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है कोनिकल, उसे केराटोकॉनस बोलते हैं, विच इज वेरी कॉमन नाउ डेज। कि बचपन में लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने आंख रगड़ते रहे क्योंकि उन्हें आंख में खुजली होती थी, तो आंख रगड़ने से एक प्रॉब्लम हो जाती है विच इज वेरी कॉमन, विच इज नोन एज केराटोकॉनस। एक वो प्रॉब्लम है। आंख उसके कॉर्निया के अंदर फिर बहुत सारी डिजीज होती है, यूविया एक लेयर होती है उसमें, यूवियाटिस में आंखें लाल हो जाती है। फिर आंखों में लेंस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कैटरेक्ट हो सकता है। फिर लेंस के पीछे हमारा पर्दा आ जाता है, तो पर्दे पर्दे से रिलेटेड भी बहुत सारी कॉमन कंडीशंस हैं। लाइक किसी को पर्दा निकल गया जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, किसी को पर्दे में छेद है, रेटिनल होल कहते हैं, बहुत ज्यादा हाई नंबर है, या किसी की आंख की लंबाई बहुत बड़ी है तो उसमें रेटिनल लेटेसेस होते हैं या रेटिना में होल होते हैं। और विद एज रिलेटेड किसी ना किसी को एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन कहते हैं, वो भी होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की डेट में आप देखते हैं, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो, दैट लॉट ऑफ द पीपल आर हैविंग डायबिटीज एंड मेनी पेशेंट आर हैविंग हाइपरटेंशन। तो ऐसे लोगों को डायबिटीज, डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होने लगती है, आंखों में पर्दों में खून रिसने लगता है। तो दीज आर वेरी वेरी कॉमन कंडीशन दैट वी से इन डे टू डे प्रैक्टिस। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग, थैंक यू। अभी एक सवाल आया है सर मेरे मन में, मैंने पढ़ा था, जी। अगर हम दांत निकाले, हमारी दाढ़ जो है, तो वो भी इज इट ओके। कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व, की भाई हमारे आंख भी साइड कमजोर हो जाती है अगर हम लोग टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये सही बात है सर? नो नो, इट इज नॉट, नहीं, ऐसा डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि देयर आर नर्व विच आर गोइंग थ्रू, बट दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, आई से ऐसा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। आप बट फिर भी अगर कोई आपके आंखों में इन्फेक्शन है, अगर आपको आई का सपोज आई सर्जरी होने वाली है, कैटरेक्ट होने वाला है, और आपको टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए जाना है, तो पहले आप जरूर देखेंगे कि कहीं बॉडी में कहीं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में लाइक विच इज नोन एज एंडोजेनस एंडोथेल्माइटिस हो सकता है, तो आपको सर्जरी करने से पहले देख लेना कहीं बॉडी में कोई भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है। लेकिन टूथ एक्सट्रैक्शन होना तो पहले आप टूथ एक्सट्रैक्शन करा लीजिए, एंटीबायोटिक कोर्स कर लीजिए, उसके बाद जब पूरा दांतों का ठीक हो जाए तब आप कैटरेक्ट सर्जरी करें। ऐसे दांतों में और आंखों में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा नहीं है। At what age should one go in for the cataract surgery? Is there any age limit for that, ओके, or any age bar? देखिए कैटरेक्ट कैन हैपन एट एनी एज। कैटरेक्ट कंजेनिटल भी हो सकता है, जो बच्चा पैदा है उसे भी हो सकता है। कैटरेक्ट कैन हैपन एट एनी एज नाउअडेज। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। जनरली वी सी एज रिलेटेड कैटरेक्ट, जिसे हम सिनाइल कैटरेक्ट कहते हैं, जो कि जनरली 50 साल के बाद ही होता है। तो उसके कुछ कंडीशन है, अगर आपका डे टू डे एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे ठीक से, चश्मे के बाद भी आप ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको लोगों का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा, धुंधलापन हो रहा है, देन वी शुड गो फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। बट ऐसा ऐसा कोई एज नहीं है। जब भी कैटरेक्ट है तो आपको उसको कैटरेक्ट ऑपरेट कराना ही है, और देखना जरूर है कि मैच्योर तो नहीं हो रहा, जिसे हम पकना कहते हैं, वो तो नहीं हो रहा। ये सब ये आपको डॉक्टर को दिखा के ही पता लग सकता है। जी सर, ये सर्जरी जो होती है कैटरेक्ट सर्जरी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं सर? मोतियाबिंद ऑपरेशन कहते हैं। कितने दिन लगते हैं इस ऑपरेशन के लिए, कितने वक्त लगता, कितने दिन पेशेंट वहां पर रहना है और फिर निकलना है बाहर हॉस्पिटल से? देखिए, अब इसे जो मोतियाबिंद ऑपरेशन है अब डे केयर सर्जरी के रूप में होता है। जैसे हम सारे पेशेंट के सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, और जनरली मोतियाबिंद ओल्ड लोगों में होता है, तो हम उनका हार्ट चेकअप, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब रूल आउट कर लेते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, आंखों का जनरल कंडीशन कैसा है, वो सब देख लेते हैं। और पेशेंट को कुछ टाइम हो सकता है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप पर रखें, और देन उनको ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन होता है, कुछ टाइम, आधा एक घंटा या 2-3 घंटा उन्हें हम हॉस्पिटल में रखते हैं, देन सेम डे उनको डिस्चार्ज किया जाता है। तो अब जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है नाउ डेज, इट हैज कम अंडर डे केयर सर्जरी। अब उसे जनरली उन्हें मतलब एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस की बहुत कोई सीवियर और कंडीशन हो। अदरवाइज वी कैन सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट। जी सर, जी सर। सर, अगर आपकी तरह कोई बाहर जो यूथ है जो देखेंगे हाँ इस वीडियो को, जो देख रहे हैं, अगर आपकी तरह बनना चाहेंगे, दे वांट टू बिकम एन आई डॉक्टर, एन आई सर्जन, तो किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए उनको, क्या क्या कोर्सेज कंप्लीट करना पड़ेगा उनको टू बी लाइक यू? देखिए, हमारे टाइम पे तो देयर वर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट, नॉट नाउ, बट नाउ इफ पर से फॉर इंडिया इफ आई से देयर नाउ अ नीट टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया है,
उसमें हम Yes, sir. उसमें देयर इज वन क्वेश्चन, आई थिंक आई जस्ट सॉ अ क्वेश्चन। उसमें देखिए हमें टेस्ट एग्जाम हमें क्लियर करना पड़ता है, नीट पीजी कहते हैं उसको। उस बाद पहले हमें एमबीबीएस करना है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी का कोर्स क्लियर करना है। देन देयर इज अनदर एग्जाम फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन विच इज नो लाइक आई में होता है एमएस, लाइक वी डू इन मास्टर ऑफ सर्जरी इन ऑप्थेल्मोलॉजी, वो हमें क्लियर करना है। 3 इयर्स का एग्जाम होता है। उसके बाद वी कैन गो टू डिफरेंट डिफरेंट like specific eye problems, like there are so many centers हैं इंडिया में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लाइक शंकर आई हॉस्पिटल, शंकरा नेत्र नेत्र वो है, और एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल है, जो कि फेलोशिप कराते हैं स्पेसिफिक पार्ट्स में, लाइक कॉर्निया में फेलोशिप करनी है, रेटिना में करनी है। देन वी कैन गो टू दोज हॉस्पिटल्स आल्सो। Yes. So we have a question from one of our participants here, Mr. Pawan Sharma sir. That is like, please could you tell us about eye dislocation and is it curable by surgery? What is eye dislocation or eye dislocate? Is something like that? देखिए आई ऐसा, आई में देखिए लेंस डिसलोकेशन हो सकता है। आई डिसलोकेशन ऐसा ऐसा कोई टर्म नहीं है। हाँ बस सर्जरी, जैसे किसी को कोई चोट लग गई हो, जैसे हम आंखों की हड्डी ऑर्बिट है उसमें आंख ऊपर नीचे चली गई, टेढ़ी हो गई, तो उसको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। ऐसा आई डिसलोकेशन इज नॉट अ परफेक्ट टर्म, ऐसा कोई टर्म नहीं है। आंख में जो लेंस है, कई बार चोट लगने से लेंस डिसलोकेशन हो जाता है, तो उसकी सर्जरी इज पॉसिबल अगर हमने टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया। बाकी आई डिसलोकेशन आई थिंक ये, या स्क्विंट या भैंगेपन के बारे में पूछना चाह रहे हैं आई थिंक, जिसकी आंख तिरछी हो, किसी की आंख ऊपर होती है, किसी की नीचे, किसी की बाहर, किसी की अंदर, तो दिस इज नोन एज अ स्क्विंट, जिसमें कि आंख एक ही जगह पे नहीं देख रही है, एक आंख कहीं और देख रही है, विजुअल अलाइनमेंट नहीं है, तो उसे हम स्क्विंट कहते हैं, भैंगापन कहते हैं। तो कई बार भैंगेपन तो चश्मे से ही ठीक हो जाते हैं, और कई बार चश्मे के साथ सर्जरी भी करनी पड़ती है। Yes, sir. सर हमने देखा है जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक का आंख बच जाती है और एक आंख पूरा डैमेज हो चुका हुआ होगा, जी तब वहां पर आर्टिफिशियल आई फिक्स, दे विल फिक्स आर्टिफिशियल आईज, हमने देखा है छोटे छोटे वीडियोस में। तो जी। ये सचमुच में ऐसा होता है, क्या है इसके पीछे? आई जस्ट वांट टू नो द रियलिटी बिहाइंड इट। इज इट रिप्लेसेबल, एन आर्टिफिशियल आई, नहीं देखिए रियल आंख का आई? जो, यस सर। जी आंख में अगर आंख डैमेज हो गई तो पहले देखना है कितना हम आंख, सबसे पहले कोशिश आई सर्जन की होती है कि पॉसिबल हो आंख को बचाया जा सके, ताकि आंख वहां पे रहे। इन केस ऐसे कई बार हो जाता है कि पूरी आंख ही खराब हो गई, कई बार आंख को निकालना पड़ता है, आंख के कुछ पार्ट को निकालना पड़ता है, तो उसके बाद हम उसमें सिलिकॉन बॉल डालते हैं, ऑकुलर प्रोस्थेसिस कहते हैं उसको। तो उसमें सिलिकॉन बॉल डालने के बाद हम आर्टिफिशियल आई, एक सॉफ्टवेयर होता है उसके, हम जैसे नॉर्मल आई की तरह हम एक उनकी आर्टिफिशियल आई क्रिएट करते हैं, देन वी कैन ट्रांसप्लांट द आर्टिफिशियल आई टू दैट आई। तो उसे हम ऑकुलर प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसी सर्जरी इज नाउअडेज इट इज पॉसिबल। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. This one more thing, recently I interviewed a few people who were attacked by acid. जब एक एसिड विक्टिम हमारे सामने आ जाएंगे तो उनके पूरा शरीर के साथ उनके आंख भी डैमेज हो जाती है. जी जी। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप सर? Like, or maybe has any situation like that come, a patient come like that to you where you've taken care of them, or you could answer it the way you feel comfortable and from your experience. Yes. नो देखिए दिस इज एसिड इंजरी इज वेरी कॉमन। एसिड इंजरी में लाइम जिसे हम चूना कहते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, दिस ऑल्सो कम अंडर एसिड इंजरी। और किसी ने किसी के मुंह में एसिड गिर गया, या बैटरी फट गई, या गलती से हम कोई टॉयलेट क्लीनर यूज कर रहे थे, आंखों में चला गया, जब भी ऐसा हो तो तुरंत प्लेंटी ऑफ वाटर से हम उसको धोते हैं, और उसके बाद तुरंत धोने के बाद हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और फिर डॉक्टर देखते हैं कि भाई एसिड था, वो एसिड बेस्ड इंजरी है या एल्कली इंजरी है, हाउ मच स्ट्रक्चर ऑफ आई हैज बीन डैमेज्ड, उसमें आंख कितनी जल चुकी है। तो उसमें तुरंत ही कई बार क्या करना पड़ता है, देयर इज अ एमनियोटिक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, विच इज नाउ अवेलेबल। उसमें कई बार एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट करना पड़ता है तुरंत, ताकि आंख बचाई जा सके। अगर क्योंकि जैसे ही एसिड आंख में चला जाता है तो आंख का जो कॉर्निया का इपिथेलियम है पूरा निकल जाता है। अगर कॉर्निया का पूरा इपिथेलियम निकल गया तो आंख का जो कॉर्निया का बचा हुआ लेयर है वो भी गल जाती है, और आंख में पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो ना हो तो हम उसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट करते हैं उस स्टेज में, और पेशेंट को माइल्ड हो सकता है स्टेरॉइड की गोलियां दें, या स्टेरॉइड आई ड्रॉप डालें, विद एंटीबायोटिक कवर डालना पड़ता है। जी सर. और लेटर स्टेज में हो सकता है 2 या 3 स्टेज में सर्जरी करनी पड़े।
ऐसे केसेस की, तो तुरंत ही हमें डॉक्टर के पास ले जाना है और प्राइमरी केयर देना है उस पेशेंट को। और बहुत कई बार इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का भी रोल है ऐसे इंजरीज में। जब हम उसको प्राइमरी आंख को बचा लेते हैं, उसमें आंख के चारों ओर स्टेम सेल्स होते हैं, देन वी टेक स्टेम सेल्स फ्रॉम द हेल्दी आई। अगर अगर हेल्दी आई है पेशेंट की दूसरी, तो वहां से हम स्टेम सेल ले सकते हैं। नहीं तो वी ऑल्सो टेक द स्टेम सेल फ्रॉम द कॉर्निया विच हैज बीन डोनेटेड बाय अदर पीपल ऑल्सो। जी सर, जी सर। सर अक्सर देखा गया जब हम पकवान करते हैं तो ऐसा जब तड़का जी डालते हैं तड़का, तो दैट स्प्लैशेस इनटू आवर आईज। कभी कभी हम अनजाने में वो हमारी आंखों में लग जाती है। जी तो देखा है अक्सर ऐसे हमारे जो नेबर्स ने बताया कि भाई हमारी आंखों में ऐसा एक राई की दाना, जैसे जी मस्टर्ड जी। मस्टर्ड सीड हैज जस्ट द हॉट वन हैज फॉलन इनटू आवर आईज, और वहां पर एक लाल बर्ट मार्क आया था। तो इमीडिएटली अगर ऐसा है पकाए, जब कुछ आंख में ऐसा कुछ गिर गए, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन? फर्स्ट थिंग, जैसे जब भी ऐसा है तो जलने से जैसे ही जलता है तो आपको तुरंत अच्छे से वॉश करना है। देखना कोई पार्टिकुलेट मटेरियल तो नहीं चला गया जो हम तड़का दे रहे हैं, आप जो कह रहे हैं राई का दाना तो नहीं चला गया, यहाँ पे वॉश करना है। वॉश करने के तुरंत बाद अपने से कोई दवाई नहीं डालनी है उसमें। अगर आपके पास कोई प्लेन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, प्लेन एंटीबायोटिक जिसमें कि स्टेरॉइड ना हो, वो आप डाल सकते हैं। और तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है और देखना कि हमारे आंख का कौन सा एरिया डैमेज हुआ है, हाउ मच एरिया ऑफ आई इज डैमेज। वो हमें हम एक मशीन होती है जिसे हम स्लिट लैम्प कहते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट वहां से स्टार्ट होता है। अगर हम खुद से हम कोई दवाई डाल दी, कई लोग खुद से दवाई डाल देते हैं, स्टेरॉइड डाल देते हैं, वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, देखना है कि कौन सा ग्रेड है इंजरी का, उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। कई बार छोटा सा बर्न होता है वो अपने आप हील हो जाता है, बट सम टाइम मोस्ट ऑफ द एरिया इज इन्वॉल्व, तो हो सकता है उसमें हमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन करना पड़े या बाद में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी करना पड़े। तो उसी समय ही डॉक्टर के पास जाके ही पता लगे। जी sir, जी sir. So my friends, if at all you're cooking and you face any problem like something has fallen into your eye, just take care of it and meet the right kind of the doctor, the eye doctor, and get things set for yourself as soon as possible. Don't delay. And no, don't take over the counter medication. वो already पहले बता चुके हैं हमारे डॉक्टर की भाई आप नहीं लेना है. Visit a doctor, visit an eye doctor and get things done for yourself in the right way. Sir, अभी एक क्वेश्चन आया है सर चैट बॉक्स में. What are the reasons of dry eyes and how can we prevent it or cure it? ये ड्राई आईज क्या होती है? जी जी, देखिए ड्राई आई डिजीज इज अ वेरी मच कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज। और हम ड्राई आई के बहुत सारे कारण हैं। नॉर्मल पब्लिक की बात करें तो ड्राई आई सबसे ज्यादा आजकल उनको हो रहा है जो कि जिनका डिजिटल एक्सपोजर में कोई रेगुलेशन नहीं है। तो मोस्टली कंप्यूटर पर्सनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोज हु आर वर्किंग इन बैंक्स, जो कि केवल एसी वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या जिनके सर्दियों का आजकल सर्दियां हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में, तो लोगों ने केवल ब्लोअर चला रखे हैं। कहीं बहुत गर्मी है तो लोगों ने केवल एसी चला रखे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में ड्राई आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा। जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियर है या कोई बैंकिंग पर्सनल है, ऐसे लोग हमारे पास बहुत आते हैं। ड्राई आई में बेसिकली क्या होता है कि आंखों में एक तो करकराहट सी होने लगती है, लाइक फॉरेन बॉडी सेंसेशन होने लगती है। सुबह तो ठीक रहता है पर शाम जैसे इट द कंडीशन गेट वर्सन एज द डे प्रोग्रेस। आंखों में धुंधलापन होने लगता है, आंख लाल होने लगती है, ऐसे लगता है कि आंख में कुछ रेत का कंकड़ से चला गया। ऐसी कंडीशन में ड्राई आई होने के चांसेस होते हैं। तो ड्राई आई होने के बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा डिजिटल एक्सपोजर कितना है, कि हम 8-8 घंटे ज्यादा कंप्यूटर तो नहीं बैठे हुए। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को देख रहे हैं तो जनरली 1 मिनट में हमारी जो पलकें हैं उनका ब्लिंक रेट होता है 14 to 16 पर मिनट। बट जब हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, हमारा सारा ध्यान कंप्यूटर पे ही है, तो हमारा आई जो ब्लिंक होता है कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट ब्लिंक होता है। उस इनकम्प्लीट ब्लिंक के कारण जो आंखों का आंसू है उसका पूरा जो आंखों के सर्कुलेट नहीं होता है वो। ऊपर से हमारा एसी भी ऑन है या ब्लोअर ऑन है, तो हमें आंखों का जो पानी है जल्दी से उड़ने लगता है। और आंखों में कुछ एसेंशियल्स ऑयल भी होते हैं जो कि हमारे ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। अगर हम आंख पूरी नहीं झपक रहे हैं और 7 से 8 घंटे तक कंप्यूटर पे बैठे हैं, बिल्कुल हम रेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में इवेपोरेशन ऑफ टीयर फिल्म होने लगता है। इसे हम इवेपोरेटिव ड्राई आई कहते हैं। दूसरा कंडीशन हो सकती है कि आंखों में जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। जो टीयर फिल्म में जो ऑयल लेयर का फैलना है वो ठीक से नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्लिंक है। तो ये सब हमें देखना है। ये ड्राई आई बहुत कॉमन कंडीशन है। तो इसका निदान ऐसे है कि स्पेशली फॉर कंप्यूटर व्यूअर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे हम भी, आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो हम ये मैं कहना चाहूंगा कि जस्ट हमें दिस इज अ रूल विच इज नोन एज 20-20-20 रूल। जब भी हम कंप्यूटर या मोबाइल पे बैठे हैं और हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है,
तो हर 20 मिनट में इफ पॉसिबल वी शुड टेक अ ब्रेक। हर 20 मिनट में हमें 20 फीट की दूरी देखनी है 20 सेकंड के लिए, और हमें इंटेंशनल ब्लिंकिंग करनी है, जबरदस्ती आंख पूरी झपकनी है 10 से 15 बार, ताकि आंखों का जो पानी है पूरा रिसर्कुलेट हो। दूर देखने से हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और हमें आंखों में जो चिड़चिड़ापन है, थकावट है, वो कम हो जाती है। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कंप्यूटर स्क्रीन का लेवल हमारे आंख के लेवल पे हो। कंप्यूटर स्क्रीन आंख के लेवल या आंख के लेवल के नीचे होगा तो उसमें ब्लिंक रेट हमारा कम हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान देना है, और ये भी देखना कि बहुत सारी लाइटें हों, लाइटें ना हो कमरे में, और लाइट हो तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ना हो। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, दिस अनदर क्वेश्चन दैट हैज कम। अक्सर हमको सर दर्द आती है, हेडेक, माइग्रेन आती है, क्या ये भी कनेक्टेड है, आंखों जी से कुछ कनेक्शन है? यस सर, एम आई ऑडिबल? जी, देखिए, हेडेक का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ हेडेक, यस यस, देखिए जो हेडेक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक इज नाउ अनकरेक्टेड रिफ्रेक्टिव एरर। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें की चश्मे का नंबर है, उन्हें पता नहीं कि उन्हें चश्मे का नंबर है, और अपने काम करते जा रहे हैं, तो उन्हें जब चश्मे का नंबर है तो आंख क्या करती है, आंख स्क्वीज करने लगती है। जैसे मायोपिक है तो पर्सन आंखों को स्क्वीज करने लगता है और उसे देखने लगता है आंखों का ऐसे स्क्वीज करके। तो ऐसे पेशेंट को ज्यादातर हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। और माइग्रेन इज अ कंडीशन, ऐसी कंडीशन माइग्रेन मैं कहूंगा कि इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर ग्लोकोमा ऑल्सो। काला मोतिया के लिए भी ये रिस्क फैक्टर है माइग्रेन। तो आंखों से बहुत कनेक्शन है हेडेक का, और हमें सबसे पहले रूल आउट करना चाहिए कि कोई और कंडीशंस तो नहीं आंखों में, कहीं एंगल क्लोजर लाइक काला मोतिया तो नहीं हो रहा है। तो काला मोतिया है, और बहुत सारी कंडीशन है, स्क्लेराइटिस जैसी कंडीशन है, उसमें भी आंखों में दर्द या सर दर्द होने की कंडीशन बन जाती है। यस सर। सर, हम ये जानना चाहेंगे, वातावरण, ये एनवायरनमेंट जो है, क्या वो भी एक रीजन हो सकता है जो नेगेटिव प्रभाव हमारे आंखों पर असर हो सकता है, एक नेगेटिव, इन अ नेगेटिव वे, द एनवायरनमेंट अराउंड अस? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अगर हम चाहते हैं आंख अच्छी रहे तो सबसे पहले हमें अपना आउटडोर एक्सपोजर जरूर करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जब हम ग्रोइंग एज में 16-14 एज की ईयर्स तक हैं, तो हमें आउटडोर एक्सपोजर मस्ट है। अगर हम केवल घर के अंदर ही रहेंगे और धूप में बिल्कुल नहीं जाएंगे तो हमें चांसेस हैं माइनस नंबर आने के। आपने देखा होगा कि कोविड में 2020 के बाद एक मायोपिया का एपिडेमिक्स आ गया, हर जगह माइनस नंबर हो गए बच्चों को, क्योंकि 2-3 साल उनका आउटडोर एक्सपोजर नहीं हुआ। तो आउटडोर एक्सपोजर बहुत ही मस्ट है। दूसरा, इन्वायरमेंट का ये रोल है, इन केस अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, तो उसका पार्टिकुलेट मटेरियल आंखों में चला जाता है। जो पार्टिकल मटेरियल आंखों की टीयर फिल्म में घुल जाता है, तो टीयर फिल्म का जो ब्रेकअप का टाइम होता है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो बार बार पार्टिकुलेट मटेरियल आंखों में चला गया, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा, तो उससे ड्राई आई की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरा, एक्सेसिव अगर आप सनलाइट में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो सनलाइट में यूवी रेज होती, यूवी रेडिएशन होता है, उसकी वजह से आंखों का लेंस का जो प्रोटीन है डीनेचर हो जाता है, तो जल्दी मोतियाबिंद आ जाता है ऐसे लोगों को। और कई बार पर्दा भी हमारा खराब हो जाता है जब बहुत तेज धूप में रहते हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमें यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस जरूर पहनने चाहिए, और वी शुड हैव एडिक्वेट आउटडोर एक्सपोजर ऑल्सो। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। देयर वाज अनदर क्वेश्चन दैट आईड लाइक टू आस्क यू, देयर इज अनदर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज लाइक अबाउट द पीपल हु आर born blind, जो पैदाइशी, जब जन्म लेते ही उनका आंख नहीं दिखाई देता उनको, by birth they are blind, so do they have an option, or is there some type of a treatment that they could regain their sight दोबारा? uh, can they see once again? I mean, can they see again, like they haven't seen once at all, एक बार भी नहीं देखे इस जिंदगी में, क्या उनको भी चांस मिलेगा, या है ऐसा कोई टेक्नोलॉजी, यू नो, और इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल फील्ड वेयर अ पर्सन being blind from birth, will he or be she be able to see in future? देखिए, ब्लाइंड बाय बर्थ के बहुत सारे मायने हैं। पहले हमें देखना है कि आंख बनी है कि नहीं। एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं माइक्रो एनोप्थेल्मिया, जिसमें आंख बहुत छोटी होती है। एक कंडीशन होती है एनोप्थेल्मिया, उसमें आंख बनी ही नहीं होती। तो ऐसी कोई कंडीशन है एनोप्थेल्मिया जिसमें आंख बनी नहीं है, तो ऐसे केसेस में उसको विजन आ नहीं सकती। दूसरा कंडीशन है ब्लाइंड बाय बर्थ, कहीं उसे कंजेनिटल कैटरेक्ट तो नहीं है, पहले से मोतियाबिंद तो नहीं है, मतलब माँ के पेट से ही मोतियाबिंद लेके पैदा होते हैं कई बच्चे। तो ऐसे लोग बच्चे देख सकते हैं, पर जिनका आंख का स्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हुआ है, तो ऐसे लोग दोबारा नहीं देख सकते। पहले हमें ये देखना है कि हमारे आंख के स्ट्रक्चर पूरे बने हैं कि नहीं।
किस भाग में आके प्रॉब्लम है, देन उसके बाद कोई उपचार हो सकता है। जी जी सर, हम ये जानना चाहेंगे सर, जो ऐसे लोग हैं जो बाय बर्थ दे हैव दिस डिफेक्टिव आई साइट, कैन पीपल, द पीपल हु डोनेट देयर आईज, जो डोनेट करते हैं, क्या इनके आंख इनके लिए काम आएगा? कैन इट बी ट्रीट सर्जरी, हैव अ सर्जरी एंड गेट इट फिक्स्ड टू देयर आईज? इज दैट नहीं, पॉसिबल? इनके ट्रीटमेंट तभी तभी काम आ सकता है जबकि इनका काली पुतली में ही प्रॉब्लम हो, बाकी सारा सिस्टम ठीक हो, आंख का पर्दा ठीक हो, आंख की नस ठीक हो, या काली पुतली में प्रॉब्लम हो। अगर केवल काली पुतली में प्रॉब्लम है तब इनके काम आ सकता है आई डोनेशन, अदरवाइज नहीं। तो हमें देखना है कि कहीं इनका आंखों की नस ठीक है कि नहीं, आंख का पर्दा ठीक है कि नहीं। तो मतलब काली पुतली उन्हीं को ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा जिनका बाकी सिस्टम सारा सही है, केवल काली पुतली में प्रॉब्लम, बाकी चीजें सारी सही है, पर आंख का पर्दा खराब है या आंख की नस खराब है, तो ऐसे लोगों में ट्रांसप्लांट करने के बाद भी रोशनी नहीं आएगी। जी जी सर, जी सर। Have you seen, my dear friends, what all the questions we put forward to us, sir, and celebrity, our doctor today? He is Dr. Chirag Bahuguna. All types of questions I'm getting in my mind and from the chat box that's here available. Sir is able to give an answer to every single question. This shows that he's very knowledgeable and talented and experienced in the field of being an eye surgeon. Sir, एक अभी बड़ी क्वेश्चन, अभी just as I am talking to you, there's a question just that popped out in my mind. What about the surgeries for senior citizens? कि किस एज तक वो आके सर्जरी कर सकते हैं? कैन दे कम? 94 भी है, 80s में भी है लोग, क्या सब लोग कैन दे कम फॉर अ सर्जरी इवन एट दैट एज टू? इज देयर एनी एज लिमिटेशन फॉर सर्जरी, आई सर्जरी? नहीं नहीं, एज सच कोई एज लिमिट नहीं है। द ओल्डेस्ट पर्सन दैट हैव ऑपरेटेड वाज 98 years old, and she is currently alive. She is now 103 years of age, and she is coming to my OPD on yearly basis Oh wait, let's just see. to give me blessing. From last 5 years, she has been reading books, and she is very happy. So That's as such, there is no ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, बट पर्सन का बाकी सिस्टमिक कंडीशंस ठीक होना चाहिए। जी जी सर, excellent sir, that's really very nice sir. Thank you so much for sharing. Sir, we'd like to ask you one more question with regard to gender. Which gender suffers from the excessive eye problem or eyesight? Is it the male or the female or professionals? And even like, I don't know how to put it in the right way. Okay. Actually, I would like to have here the word gender being used. Which gender is affected more with eyesight problems? Like as such, I will not say that is a gender specific, but some of the diseases like thyroid eye disease, thyroid problems, and autoimmune disease, these are more seen in case of female patients. Yes. And apart from like glasses, in my practice, I see glasses more in case of female eyes, because female are mostly in the house and they are not going outdoors. Like boys are going outdoors and they have adequate sunlight exposure. So one thing that I want to emphasize, that adequate outdoor exposure, sunlight exposure is must for the normal growth of the eyes. Those who are staying inside only and not going outside, there are more chances of having minus number, which is more common in case of girl child. Thank you so very much for sharing. So my dear friends, sunlight is really important for all of us. And today I've really learned a lesson, because mostly I'm in the house most of the time because I work online and do online work. So it's very important to have sunlight for your eyes and the entire body, my friends. All the women and men get a little sunshine and be happy. Dear sir, one important question. Yes, sir, please go ahead. One thing I want to say, that like in a country like Singapore, they have made it mandatory for the children, those who are attending school, to be in outdoor for 1.5 hours, for 180 minutes in schools. They have made it mandatory to be in sunlight. That's really nice. Great. Yes. So that's, we could also, adopt that from Singapore to our children in our schools and colleges in India. Yeah, I was reading somewhere that they have adopted traditional Gurukul teaching of India. Oh, great. That's really nice. The tradition of India is really rich and great, and the Gurukul system is also one of the wonderful way of developing the intellect of the child, the physical, mental, and intellectual abilities. Yes, sir. Sir,
one very important and pressing question. Most of the youngsters of marriageable age, they are being rejected just because they have glasses. And many of, we will talk about this and then come to the next question. तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे रिश्ते टूट चुके हैं. अगर हुआ भी रिश्ता, पैसे दे के लालची लोग इस शादी में आए एंड दे आर देयर, फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर थर्ड पर्सन आ जाते हैं इसमें. पैसे के लिए शादी कर लेते हैं इसे, इवन दो दे हैव द एसेट, या रिजेक्ट तो कर देते हैं. तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे as to how we can help people with regard to this? जी जी, देखिए एज अ डॉक्टर मैं कहूँ हमारे पास पेशेंट्स बहुत आते हैं एट मैरिज के एज में स्पेशली, कि हमें सर चश्मे का नंबर उतरवाना, उससे पूछो तो कि मैरिज होने वाली है. सो दिस इज वन थिंग विच इज नाउ इट्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, कि हर कोई चाहता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज उनको चश्मे ना हो. तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली गर्ल्स आती हैं कि मैरिज होने वाली है, हमें सर चश्मे उतारना है, या चश्मे उतारने का ऑपरेशन करना है, या टेम्पररी वो करना है. तो दिस थिंग इज स्टिल देयर इन आवर सोसाइटी. तो ये चीज अभी भी है. जी जी सर. यस सर, दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट कम टू माय माइंड. एक सिनेमा में हमने देखा, तो हकीकत में तो नहीं देखा, बट सिनेमा मैंने देखा, एक 2-3 सिनेमा ऐसे में आई हैव सीन. शाम 6 बजे होते कि जब थोड़ा सा अंधेरा छाने लगा तो उनके आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है. क्या ये सच है या बस सिनेमा में ऐसे दिखाते हैं? ऐसा कोई is there some type of an eye disorder that after 6 you can't see? नहीं नहीं, ये ऐसा होता है. ऐसा दिस इज वेरी, इट वाज वेरी कॉमन प्रीवियस डेज व्हेन देयर वाज अ विटामिन ए डेफिशिएंसी. ऐसा हो सकता है बहुत, जिसको बहुत हाई मायोपिया हो, दिस इज आल्सो पॉसिबल. जिन्हें रॉड्स, आंखों में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं. तो जो कोन्स होते हैं वो हमें दिन में देखने में मदद करते हैं और कलर देखने में मदद करते हैं. एंड जो रॉड्स होते हैं हमें रात में देखने में मदद करते हैं. ऐसी कई कंडीशंस होती हैं, कई ऐसी आंखों की बीमारी हैं जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है या विटामिन ए डेफिशिएंसी है. ऐसे लोगों को शाम होने के बाद कम दिखाई देने लगता है. तो दिस इज वेरी मच ट्रू, ऐसा होता है. अभी भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली गांव में जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी रही हो बचपन में. तो इनका इलाज हो जाते हैं सर? ट्रीटेबल है सर ये? नहीं, अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी पूरी कर दी जाए तो इनका इलाज पॉसिबल है. और एक हेरिडिटरी कंडीशन जी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो उसके लिए इलाज का वो चल ही रहा है. अभी बहुत अप्रूवल नहीं मिला है, बट हाँ बहुत सारी कंडीशंस हैं. ऐसी और भी कंडीशंस हैं जिसमें कि रॉड, जिसे कहते हैं रॉड डिस्ट्रोफी है या रॉड कोन डिस्ट्रोफी है. तो अभी इनका इलाज के लिए बहुत सारे अभी काम चल ही रहा है. जी सर. सर अभी देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारे बच्चे जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो ये बात कहते हैं कि भाई मेरा मजाक उड़ाते हैं स्कूल में क्योंकि मुझे चश्मा है. चश्मिश बुलाते हैं या बुलिंग करते हैं, हर्ट करते हैं हमें. तो इन छोटे बच्चों को कैसे मदद कर सकते हैं? इज देयर एनी करेक्टिव सर्जरी और व्हाट इज द टेक्निक टू मेक देम फील गुड इन स्कूल्स? या देखिए पलट के आपने लड़ भी नहीं बहुत सकते ये बच्चे? यस. अच्छा सवाल है ये. हमारे पास भी नहीं, ऐसा बहुत सारे बच्चे आते हैं कि वो पूछते हैं कि भाई आपको चश्मा है, तो बोलते हैं चश्मा है पर पहनते नहीं. जब पूछते हैं तो कहते हैं सर हमें अच्छा नहीं लगता, या पीयर प्रेशर में बच्चे चिढ़ाते हैं. तो देखिए अगर चश्मा है तो पहनना तो पड़ेगा, क्योंकि एट दिस छोटी एज में सर्जरी अलाउड नहीं है. सर्जरी हम जनरली करते हैं, करेक्टिव सर्जरी फॉर ग्लासेस रिमूवल वी डू जनरली आफ्टर 18 ईयर्स के बाद ही करते हैं. तो जो आंखों का जब चश्मे का नंबर फिक्स हो जाता है, अगर हमने बचपन में ही सर्जरी कर दी तो उस समय आंखों का नंबर पूरा फिक्स नहीं रहता, उस समय आंखों का नंबर फिर आ जाए. तो ये आंखों जो चश्मा निकालने की सर्जरी है जनरली 18 ईयर्स के बाद ही करते हैं, जब 1 साल तक एटलीस्ट आंखों की ग्रोथ पूरी हो चुकी है आंखों की, और आंखों का चश्मे का नंबर अब बदलने नहीं वाला, तो हम ये सर्जरी करते हैं. पर जनरली स्कूल के बच्चों में ये सर्जरी नहीं की जाती. ये तो देखिए तभी पॉसिबल है जब हम स्कूल में ऐसे सेमिनार्स करें, या स्कूल्स के टीचर अपने बच्चों को समझाएं कि भाई जिसको चश्मा है वो एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए. ये तभी पॉसिबल है. Thank you for that. The school managements and the teachers should take care that children are not bullied, because the surgery or the eye correction can't take place at that age. It is 18 and above. है ना sir? जी जी. So yeah, so please take care, give them a lot of love and respect, and give good counseling to the other students not to rag or bully them. That's the only suggestion that we could share with all of you. Sir, thank you for all the professional expertise that you shared Thank with you. us. हम ये पूछना चाहेंगे आपसे
ये सब करते करते आप इतने साल हो चुके हैं, आप इस फील्ड में हैं, तो आप अपने स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं? कि भाई अपने प्रोफेशन में हम सभी बहुत सारे स्ट्रेस लेते हैं, अलग अलग स्ट्रेस फेस करते हैं, जी तो जी। आपके प्रोफेशन में किस तरह की स्ट्रेस आते हैं और आप उसको कैसे संभालते हैं? What are the challenges you face and how you overcome them? देखिए देखिए जो चैलेंजेस हैं दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी एवरी प्रोफेशन। और जनरली मुझे तो बहुत अच्छा है कि दैट दिस दिस इज माय पैशन एंड माय पैशन इज माय प्रोफेशन। सो एज सच आई डोंट टेक एनी स्ट्रेस। हाँ फिर भी बीइंग ए सर्जन आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता है व्हेन यू डूइंग ए सर्जरी, या पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं। तो जब भी हम कोशिश करते हैं एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में, जो एक्सपेक्टेशन है पेशेंट की और रियलिटी क्या है उसके बीच में एक थोड़ा सा गैप रहता है, कई बार एक्सपेक्टेशन मेट नहीं होती हैं। तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो एक सर्जन की लाइफ में रहता ही है। तो हम एक प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि सपोज सर्जरी की, लोग कहते हैं सर सर्जरी की इतना ऑपरेशन हुआ फिर भी विजन नहीं आ रही है, थोड़ा सा चश्मे का नंबर आ गया। तो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, उसमें हम बहुत स्ट्रेस एज सच नहीं लेते। तो गुड वी डू अ गुड पेशेंट काउंसलिंग। जी सर। सर, इसके अलावा, आपके काम के अलावा आपको वक्त मिलता है अच्छी सी किताबें पढ़ने का, अपार्ट फ्रॉम ऑल द मेडिकल बुक्स दैट यू रीड एंड अपग्रेड योर नॉलेज एंड स्किल्स एवरी ईयर, डू यू गेट टाइम टू रीड सम नॉवेल्स और मैगजीन्स? अगर ऐसा है तो वो कौन सी बुक है जो आपको यू फाइंड इंटरेस्टिंग? नहीं, मैं जब भी ऐसा टाइम होता है तो रिलैक्स करने का तो जनरली आए मैं पुराने गाने सुनता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे टाइम टाइम है मेरे पास। और मैं कुछ अपनी थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ बुक्स भी पढ़ता हूँ। तो जैसे मैंने 5.1 पढ़ी थी, तो मैं पढ़ता हूँ ऐसे बुक्स, ऐसी बात नहीं है। यस सर, दैट्स रियली नाइस व्हेन यू से पैशन बिकम्स प्रोफेशन, तो वक्त आ ही जाता, जी निकाल सकते हैं हम लोग। सो प्रोफेशन इज प्रोफेशन एंड यू हैव सम टाइम फॉर योरसेल्फ to indulge yourself and enjoy your life either reading a wonderful book. Sir, I would like now you to share अपने बचपन से कोई खास इंसिडेंट आपको याद है, अब तक मन में एवरग्रीन है? Were you very naughty? Were you very talkative? किस तरह के बच्चे थे आप? मार खाए मम्मी डैडी से या टीचर से? ऐसा कोई याद, सिचुएशन याद है सर? जी जी। देखिए अपने बचपन में तो बहुत बहुत आई वाज वेरी नॉटी। और मैं बचपन का, ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, पर एक इंसिडेंट मुझे याद है। मैं बचपन में खेल रहा था और पहाड़ों में है तो वहाँ पे सीढ़ी नुमा जो होते हैं, खेत होते हैं, लाइक टेरेस, यू नो देयर इज अ टेरेस फार्मिंग। एक खेत के नीचे दूसरा खेत, तीसरा खेत, चौथा खेत होता है। तो मैं बचपन में खेल रहा था, मैं बहुत शैतान था। और मैं ऐसे अपने भाई के पीछे बॉल फेंक रहा था और मैंने देखा नहीं, मैं नीचे छह छह सात खेत नीचे गिर गया एकदम कांटों में। तो वो इंसिडेंट मुझे याद है और मैं कांटों में फंस गया। फिर मेरी बड़ी सिस्टर मुझे लेने आई, बेचारी, मैं देखता रहा कैसे कैसे एक एक खेत को करते 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 5 मिनट में लगे। फिर वो मुझे उठा के ऊपर ले गई। और मैं तो ये मुझे एकदम अच्छे से याद है। जी जी सर, जी सर। स्कूल का कोई इंसिडेंट याद है आपको? स्कूल में वैसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि हमने बहुत स्पेसिफिक इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं, बट बहुत सारे जैसे चीजें हैं, हमने स्कूल में बहुत हंसी हंसी खुशी मजाक तो करते ही हैं। एनी वन इंसिडेंट व्हिच इज लाइक, ऐसे सोचते कि आ जाती है मन में, इट्स जस्ट पॉप्स अप इन योर माइंड फ्रेश? जी जी। जी जी। हम जैसे हमारा स्कूल था पौड़ी में बचपन में, तो स्कूल जब हमारा एक न्यू बिल्डिंग बन रही थी तो उस टाइम पे एक टीन शेड की बिल्डिंग बन गई थी। और उसमें एक लोहे की वो थी, पाइप सा था ऊपर। तो जब रिसेस था तो हम उसके बाद मैथ्स का उसका होने वाला था, पीरियड होने वाला था। एक हमारा दोस्त उसमें जो आयरन का जो बार लगा हुआ था उसमें ऊपर चढ़ गया, टीन तक चढ़ गया, बहुत ऊपर, कम से कम वो 20 फीट का ऊंचा रहा होगा। वो ऊपर से मुझे चलने लगे, चिराग चिराग, मैंने कहाँ से आवाज आ रही, देखा था ऊपर से। और तब तक हमारा पीरियड शुरू हो गया, हम सब बैठ गए। और जब सर ने देखा एक सीट खाली है तो वो लड़का दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो ऊपर था, आयरन बार में फंसा हुआ था। तो वो चीज मुझे अभी भी बिल्कुल याद आती है। वो फिर धीरे 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 नीचे आया। जी जी सर, दैट्स रियली नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाउ शुड द पीपल रिमेम्बर डॉक्टर चिराग बहुगुणा? किस तरह आपको याद करनी है और क्यों? क्यों तो आई विल नॉट आस्क यू, हाउ द पीपल शुड रिमेम्बर यू, आई लाइक टू आस्क। देखिए आप मुझे जब भी याद करें तो मेरा नाम चिराग है। मैं चाहता हूँ सबकी आंखें ठीक हो, पूरे दुनिया की। मैं इसीलिए बचपन से ही मैंने ये सोच लिया था, तय कर लिया था कि मैं आई सर्जन बनूंगा।
इसलिए मेरा नाम भी मेरे घर वालों ने चिराग रखा है कि तू सबकी आंखों में चिराग बन के ही रहना। तो कोई भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे याद करें, आई रिलेटेड नहीं भी, एनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो दे कैन डायरेक्टली अप्रोच मी। That's really nice. रोशनी लाना है किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी बात है। तो यस सर, यू आर रियली अ चिराग इन द लाइव्स ऑफ पीपल हु यू हैव टच्ड, एंड टुडे आप चिराग बनकर हमारे मंच पर आए हैं टू लाइट द लैम्प अक्रॉस द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड दैट यस, your eyes are important and there are medical treatments and surgeries available, corrective surgeries for your eyes. And if you'd really like to connect with our guest and celebrity, that is Dr. Chirag Bahuguna, you could. We'll share his information in the description when we share the video. Dear sir, मूवीज के बारे में तो आप वक्त ही निकालते हो, आप फॉर रीडिंग वक्त निकालते हैं, काम के लिए भी वक्त रखते हैं, और डू यू वॉच मूवीज टू? क्या शौक रखते हैं मूवीज में भी? अगर है तो आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? नहीं, मूवीज में बहुत शौक रखता हूँ मैं पुरानी पिक्चर भी देखता हूँ, नई। जी सर, am I audible? Sir, am I audible? वीडियो इज लिटिल जिटरी। Yes, yes. Over to you, sir. Yes, sir. तो मूवीज की बात करें तो मैं हर तरह की मूवीज देखता हूँ, और अभी मेरे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ में एनिमेटेड मूवीज भी देख रहा हूँ आजकल। रिसेंटली हमने अलादीन देखी, और अभी मैं उनके साथ और भी मूवीज देख रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं आई टेक टाइम टू सी मूवीज। What about लाइक traveling? या ट्रैवलिंग में मुझे बहुत मजा आता है। और जब भी कोई कॉन्फ्रेंसेस होती है, लाइक माय वाइफ इज आल्सो ईएनटी सर्जन, तो उसकी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो हम उस नई जगह चले जाते हैं। लाइक रिसेंटली हम सितंबर में पुणे गए थे, देन अक्टूबर में आई वेंट टू एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल, तब हैदराबाद भी हम ट्रैवलिंग करने गए। और इसी दिसंबर में हम वी वेंट टू चेन्नई एंड केरला। वी मेक इट अ पॉइंट टू ट्रैवल। That's great. So what is that one thing you like about yourself, that this is Chirag? I love myself, I respect myself because I've identified this is my inner strength. What is that, sir? The first thing is perseverance and hard work. Whatever you do it with your whole heart. अगर आप उसमें पूरा ताकत लगा देंगे और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे तो भगवान भी आपकी बिल्कुल मदद करता है वो करने में। तो परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क से ही मैं अपने आप खुद को पहचानता हूँ। That's beautiful, lovely message. Perseverance and hard work करते जाइए, भगवान ऊपर वाले जरूर आपका मदद करेगा। जी, देर है अंधेर नहीं, they say that, right? Yeah. exactly, थोड़ा sir. डिले होगा, but then you have to keep trying. Definitely God will Yeah. bless. Dear sir, स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं आप? जी, मैं स्पोर्ट्स में रुचि रखता हूँ, और रिसेंटली अभी IIMA देहरादून में ऑप्थेल्मोलॉजी रिले रेस में वी केम सेकंड, तो हमें सिल्वर मेडल मिला उसमें 100 मीटर रिले रेस में। Oh, great. या इन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज वी हैव हमें गोल्ड मेडल मिला है क्रिकेट में। वंडरफुल। क्रिकेट, आप क्रिकेट में भी रुचि रखते हैं सर? जी, अब काफी टाइम से मैं खेल नहीं पाया, बट कॉलेज टाइम में मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, एंड 100 मीटर रेस में वो लिया है। दिल्ली में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है जब मैं MBBS में था, तो उसमें मुझे 100 मीटर रेस में दिल्ली में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, पूरे जब मेडिकल कॉलेज की रेसिंग थी। तो अभी भी हम रेसिंग में कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, क्रिकेट के लिए कभी कभी उतना वक्त नहीं निकाल पाता, हाँ, पर जब भी समय लगता है तो जाता हूँ। भारत हार गई वर्ल्ड कप में, तो आपको कैसा लगा? देखिए, अच्छा तो नहीं लगा, बट जो बेस्ट होता है वही जीतता है, उसे ऐसा कुछ नहीं है। फिर आएगा वर्ल्ड कप, फिर जीतेंगे, ऐसी कोई वो चीज नहीं है, बट खेल को खेल भावना से ही देखना चाहिए। परफेक्ट, दैट्स रियली नाइस। डियर सर, किस तरह के बदलाव होनी चाहिए इस दुनिया में, इस प्रपंच में? किस तरह के बदलाव आपके नजरिए से, व्हाट डू यू थिंक वेयर द चेंज हैज टू बी? देखिए, फर्स्ट चेंज तो आदमी खुद को ही कर सकता है, किसी और का चेंज तो ला नहीं सकता। फर्स्ट चेंज अपने खुद से होता है, अपनी फैमिली से होता है, अपने सोसाइटी से होता है। अगर मैं मान के चलूं कि मुझे सपोज मैं देहरादून में रहता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे देहरादून को कुछ करना है, या इंडिया में रहता हूँ, इंडिया के लिए भी कुछ करना है, तो सबसे पहले मुझे अपने घर से ही करना है। अगर मुझे सफाई करनी है, सबसे पहले अपने घर की करनी है, अपने पड़ोस की करनी है, अपने मोहल्ले की करनी है। तो वट एवर आई डू फॉर देहरादून, इट विल हैपन फॉर इंडिया। तो हर कंट्री का ऐसे, अगर आप कुछ भी करना है तो आप अपने घर से ही शुरू कीजिए। Perfect. That's really excellent. That's really nice. If you want to be the change, I mean, if you want to see the change, you have to be the change first in your own self, your family, and of course, it spreads like that. It becomes positive everywhere.
Yes. Sir, the next question coming up. कितने सारे दोस्त आपके साथ आज तक खड़े हैं? Right from your kindergarten days, your MBBS years, and your professional zone as well. How many friends have stood with you through the ups and downs? Do you believe in friendship? Yeah, sure. बिना उसके तो कुछ होता ही नहीं है। और जब भी जैसे एमबीबीएस टाइम था, बहुत स्ट्रेस होता था, तो हम अपने फ्रेंड से बात कर लिया करते थे। और आज भी जैसे आप कहते हैं किंडरगार्टन, मेरे एलकेजी यूकेजी के फ्रेंड्स हैं, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप। मेरे उत्तराखंड के फ्रेंड्स अलग हैं, दिल्ली में थे उसके अलग ग्रुप हैं। तो अभी तक मेरे साथ दोस्त मेरे खड़े हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपस में देन वी शेयर, बहुत इजी रिलैक्स महसूस करते Yes. As a surgeon, as an eye surgeon, what brings a smile to your face? हैं। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? As an eye surgeon, as an eye doctor, and as an eye specialist, what brings a smile to your face when you're on the professional zone? वो अच्छा स्माइल कब आती है आपके चेहरे? देखिए, जब भी मैं पेशेंट को ऑपरेट करता हूँ और सम टाइम हम उन्हें लाइक ब्लॉक करते हैं और फिर उनको पट्टी लगाते हैं, नेक्स्ट डे जब उनका पट्टी खोलते हैं, जो पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत अच्छा दिखाई दे, कई सालों से मैंने ऐसे देखा नहीं था, तो मुझे बहुत खुशी होती है। Perfect. That's really nice. Yes. Apart from the professional space, just normally, if I ask you, what makes you smile? ओके, लाइक आई कीप ऑन स्माइलिंग एवरी डे। मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि खुश ही रहूँ, दुख आए चाहे सुख, मैं चाहता हूँ हमेशा खुश ही रहूँ। एंड दिस कम फ्रॉम इनसाइड। एंड देखिए, खुशी किसी आउटर उसमें डिपेंड नहीं करती। यू हैव टू बी लाइक हैप्पी फ्रॉम विद इन, एंड नोबडी हैज पावर टू मेक यू फील बैड। तो ये यू हैव द पावर मेक हैप्पी इन योरसेल्फ। तो हमारे पास ही है पावर, ये किसी और के पास पावर नहीं है कि हमें फील बैड बैड फील करा सके। Yes, yes. Very nice. Any weakness, sir? ओके, वीकनेस। देखिए, वीकनेस इसमें मैं क्या बोलूं, लाइक किस किस फ्रंट पे आप पूछना चाह रहे हैं? गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, या खामोश हो नहीं, जाते हैं? Like it जी could जी, be एक any. टाइम था मैं दूसरों पे भरोसा जल्दी करना है. नहीं, मैं भरोसा भी जल्दी करता हूँ। एक टाइम था मैं पहले गुस्सा हो जाता था, बट जब मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब किया कुछ टाइम, तो मैं अब मुझे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल। मैं ट्राई करता हूँ गुस्सा ना, अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता। तो पहले मेरा एक टाइम पे मेरा वीकनेस आता, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करता था, बट अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब ऐसा नहीं। जी सर, किसी चीज का डर लगता है सर आपको? देखिए, डर तभी लगता है कि जो मैं जनरली, अगर मैं अपने प्रोफेशन में बात करूं तो यही कहता हूं कि भाई जो भी मैं सोच रहा हूं मेरा रिजल्ट अगर वैसे ही आए तो मैं बहुत खुश हूं। अगर नहीं लगता है कि भाई ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, तब थोड़ा सा डर लगता है। बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा लगता है कि भाई जो मैंने रिजल्ट सोचा है इस सर्जरी पर्टिनेंट ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट डे तो कैसा होगा, तो उसमें थोड़ा सा डर लगता यस सर। सर, जब कभी हम लो फील करते हैं, हम सभी फील करते हैं, सब है। जी कुछ जी, ठीक ही चलती रहती है जिंदगी में, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब सुबह में उठते हैं एक लो फील कि भाई आज नहीं उठना है, कुछ नहीं करना है, अंदर से अजीब तरह की फीलिंग होती रहती, वो क्या है भी नहीं मालूम, तो जी, तब आपको शक्ति कहाँ मिलती है टू फेस द डे? नहीं, जब भी ऐसा होता है तो आई स्टॉट मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, छोटे छोटे हैं, और मुझे लगता है जो छोटे बच्चे हैं दे आर ऑलवेज इन अ मेडिटेशन फेज, वो हमेशा मेडिटेशन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो भी वो काम कर रहे हैं पूरे मन से कर रहे हैं। सपोज वो सेब खा रहा है, एप्पल खा रहा है, तो उसका सारा ध्यान उसी पे होता है और कहीं नहीं। वो हमेशा ही खुश रहता है, उससे कोई किसी बात की चिंता नहीं रहती। जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मेरा सारा स्ट्रेस उसी में खत्म हो जाता है। जब भी मैं देखता हूँ कि भाई वो मुझसे कुछ पूछ रहा है तो उसी पे उसका ध्यान उसी पे और किसी चीज में नहीं है, वो खेल रहा है छोटी छोटी चीजों में, उसको वो खुश है। उसको कई बार मतलब छोटी सी कोई पेंसिल मिल गई जो टूटी हुई भी हो उसमें ही खुश है। तो मुझे लगता है इतनी छोटी छोटी चीजों में खुश है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को देखता हूँ उसमें मैं अपना सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सर, अगर आप आज एक आई सर्जन नहीं होते तो क्या है। जी, बनते? अगर माई सर्जन नहीं होता तो आई थिंक मैं एक टीचर ही होता। मैंने ये सोचा था, अगर मैंने तो मैं आई वुड हैव टॉट द वर्ड। व्हाट सब्जेक्ट? मैं फिजिक्स एंड मैथ्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यस सर, योर फेवरेट कलर? इट्स ग्रीन कलर। Green. Like any specific reason? Because we've seen most of the times in the hospitals, green is used like for जी surgeries and all of those जी, things. I have seen. So is it something connected like that?
देखिए ग्रीन कलर जो वेवलेंथ होती है लाइट की उसकी मीडियम उसमें होता है। ग्रीन इज वेरी सूदिंग एंड द वेवलेंथ इज नाइदर बहुत बड़ी नहीं होती बहुत छोटी नहीं होती ग्रीन कलर की, तो इट्स अ वेरी सूदिंग कलर। एंड अगर आप देखेंगे अर्थ में ग्रीन, अगर आप देखते हैं एवरीथिंग इज ग्रीन लाइक ग्रीन प्लांट, देन इट गिव अ वेरी सूदिंग इफेक्ट। तो इसीलिए हॉस्पिटल में ग्रीन आप देखें ग्रीन कर्टेन्स होते हैं, जो पेशेंट कई बार ग्रीन पट्टियां भी पहनते हैं, इसी कारण है कि ग्रीन वो होता है वहाँ पे कलर होता है, तो इट गिव अ Yes, सूदिंग इफेक्ट टू द आईज एंड माइंड। perfect. That's really nice. A great explanation to that, you know. A fair one and the right one too. Dear sir, would you like to share a proverb or a quotation, either in Hindi or in English? एक मुहावरा. जी जी, मैं या तो संस्कृत में कहना चाहूंगा उसको। जी sir. उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा न ही सुप्तस्य सिंहसि प्रवसन्ते मुखे मृगा। इसका मतलब है कि उद्यम करने से ही आपके काम पूरे हो सकते हैं, केवल इच्छा से ही आपके काम पूरे नहीं होंगे। जिस प्रकार शेर को अगर भूख लगी है तो उसे भी मृग मतलब डेयर के पीछे भागना ही पड़ेगा, अपने आप डेयर उसके मुंह में नहीं चला जाएगा। तो हमें काम करना ही है, कुछ भी पाना है तो काम करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने दिया. Even if it is a lion or a tiger that wants food, that's not going to come into its mouth. It has to work for it, run for it. And you know, that's really nice. अच्छा लगा एकदम ऐसे सुनते कि या अगर उनको भी करना है शेयर, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ द जंगल, अ वेरी पावरफुल एनिमल, अगर उसको भी मेहनत करनी पड़ती है तो हम क्या चीज है. वी ऑल्सो हैव टू जी बी ह्यूमन बींग्स, वी हैव टू डू इट. We are not as powerful as the lion, but we are talented, but not as physically strong as the lion or the tiger or wild animals, you could say. Sir, कितनी भाषाएं आती है आपको? आप संस्कृत में आप तो कुछ अब शेयर कर दिए. ये थोड़ी बहुत संस्कृत तो एकदम परफेक्ट नहीं आती, बट आती है हिंदी आई नो, इंग्लिश आई नो एंड लोकल गढ़वाली डायलेक्ट आई नो। Great. That's really nice. Do you sing too? नहीं बहुत मैं सिंग नहीं करता, मैं हाँ गाने जरूर सुनता हूँ पर ऐसे गाता नहीं। एक या दो लाइन भक्ति के गीत, कुछ भी नहीं? नहीं मैं गाना बहुत ज्यादा नहीं। Would you like to try one or two line? Would you like to oblige? If I could ask a doctor, मुझे नहीं मालूम है. I just ask because apart from being a doctor, do you also hum a little? Like when you're like free, like do you hum maybe a bhakti song or your favorite Bollywood song? जी जी, ऐसे बहुत सारे लाइक तेरी आंखों के बिना इस दुनिया में रखा क्या है। गा दीजिए ना हमारे लिए फिर, हमारे सभी दर्शकों के लिए. Just 2 lines. ओके। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। You have a lovely voice also, and you selected a lovely song also. थैंक यू थैंक यू। Hats off to you for that beautiful song. It is a tribute to all of you. Yes, sir. Dear sir, I'd like to ask you now, mental health. तो what is your thoughts, और किस तरह ये आगे ले जा सकते हैं हम लोग कि बे अब देखो आंखों में कुछ गिर गया तो हम आ जाते हैं आई डॉक्टर से मिलने, जी बीमार है या, बट लेकिन मन में कुछ हो रही है, किसी को भी बताएंगे नहीं, हम बस खामोशी अंदर ही अंदर मरते रहेंगे अंदर, वी जी सफर इनसाइड, वो डिप्रेशन हो जाता. कोई आइडेंटिफाई करे तब इट इज वेरी लेट. तो विद जी। रिगार्ड टू मेंटल हेल्थ आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? देखिए अप्स एंड डाउन तो सबकी लाइफ में आते ही, पर ये प्रॉब्लम तब बन जाता है जब ये हमारी डेली लाइफ में इंटरफेयर करने लगता है। और दूसरा जब हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो हमें एक तो सोशल होना ही चाहिए, एवरी पर्सन शुड बी अ सोशल होना चाहिए, अपने फ्रेंड से कभी टच नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मदर फादर हो गए, भाई बहन हो गए, आपको जब भी ऐसा फील हो अपने माँ बाप से यू कैन शेयर। माँ बाप नहीं तो यू कैन शेयर विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर। वो नहीं है तो आपके फ्रेंड जरूर होंगे। तो आपको मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर आप अकेले रहेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो। तो आपको सोशल हमेशा ही रहना है। और आप देखेंगे जैसे हमारा एज होता जाता है हमारे फ्रेंड सर्किल कम होता जाता है। दैट इज ऑलमोस्ट ट्रू ऑन राइट इन एवरी एस्पेक्ट। बट आज की डेट में देखें हमारे पास इतने सारे मीडिया हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। इवन देन लोगों को प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ है, जबकि आप चुटकी बजाते ही कहीं भी अपने दोस्त से किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। तो आपको इस फैसिलिटी का पूरा यूज करना चाहिए और कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। आपके जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, आपके लिए हैं, इस दुनिया में आप हो और उनसे आपको बात जरूर करनी चाहिए। थैंक यू सर फॉर दैट ब्यूटीफुल मैसेज. बहुत बहुत अच्छी बड़ी मैसेज आपने दिया आज. डोंट सफर इन साइलेंस, मैन इज अ सोशल एनिमल, कनेक्ट विद फ्रेंड्स, सोशलाइज. एंड एज यू सेड लेटेस्ट गैजेट्स भी हैं,
दुनिया के कोई कोने में भी है अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार, कनेक्ट विद देम, डू नॉट आइसोलेट योरसेल्फ। व्हेन यू आइसोलेट योरसेल्फ, वहां पर ज्यादा नेगेटिविटी में सोच में पड़ जाएंगे हम लोग, एंड इट विल स्पॉइल आवर होल लाइफ। ब्यूटीफुल मैसेज सर। अगर परमात्मा या ये यूनिवर्स आपको एक तोहफा दे रहे हैं, दैट इज लाइक गिविंग यू अ बून और अ गिफ्ट, अ सुपर पावर, व्हाट टाइप ऑफ अ सुपर पावर वुड यू वांट एज अ गिफ्ट? ये सुपर पावर मैं यही चाहूंगा कि मेरे हाथों द्वारा जो भी ऑपरेशन किया हो, हर सर्जरी सक्सेसफुल हो। How nice. That's beautiful. That's really nice. And maybe God says tatastu, and like, you really have that, and you have excellent knowledge, sir. Definitely you will really give a lot. You've been giving a lot to so many patients. You will do in the future. We have that hope, and the Almighty will be with you and all of us. Thank you. That's really nice. Sir, आगे आने वाले 50 सालों में मेडिकल स्ट्रीम में या with regard to being an eye doctor, an eye surgeon, and medical line connected with the eyes, what type of changes you visualize in the next 50 years? जी, देखिए, जब हम पढ़ते थे और आज की डेट में बहुत सिनेरियो चेंज हो चुका है। अभी उस टाइम पे हम पढ़ते थे कि काली पुतली का पूरा ट्रांसप्लांट किया जाता है, बट अब हम देखते हैं काली पुतली की कुछ स्पेसिफिक लेयर्स भी हैं दैट कैन बी ट्रांसप्लांटेड। और हम एलवी प्रसाद की बात करें, हैदराबाद में अभी एक आई ड्रॉप्स के वो काम कर रहे हैं जिसमें कि स्टेम सेल्स को रिप्लेस किया जा सके। और बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं आंखों के लिए, लाइक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक कंडीशन है जिसमें कि कानपुर में जीएसवी मेडिकल कॉलेज में काम हो रहा है। तो आगे फील्ड में बहुत चेंजेस आ रहे हैं अभी। और सर्जरी में हम करते थे पहले बहुत बड़े चीरे से किया करते थे, मोतियाबिंद, अब छोटे छोटे चीरे से किए जाते हैं, मतलब लेजर से करते हैं, फेको सर्जरी करते हैं। तो आगे 50 ईयर्स में बहुत अच्छा रहने वाला है और इंडिया बहुत तेजी से मूव कर रहा है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल जो फैसिलिटी दे रहा है वर्ल्ड में इंडिया। और आप देखें कि लाइक कंट्रीज लाइक अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आपको कहीं दिखाना है आंखों के डॉक्टर के लिए, तो पहले आपको जनरल एमबीबीएस के पास जाना है, देन ही रिफर यू टू हायर सेंटर। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप यू कैन गो डायरेक्टली, आप जा सकते हैं। तो इसमें हम देखें इंडिया बहुत आगे है। तो और आगे 50 ईयर्स में एआई का यूज भी, मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा, रोल जरूर होगा। Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir, for sharing that. A beautiful future for India and the people across India, the entire world. That in the next 50 years, lots of medical improvements will be there with regard to your eyes and entire body and the environment as well. Sir, this is an imaginary question. आपके हाथ में एक टाइम मशीन है, हम दे देंगे आपको एक टाइम मशीन, एक बटन दबानी है और वो मिशन आपको पुराने जमाने में ले जाएगी, वहां पर जाके किसी और का जिंदगी जीनी है और फिर आ जाना है यहाँ पर। तो अगर ऐसा मौका मिला आपको, तो आप किसकी जिंदगी जीना चाहेंगे? जी के फिर लौट के आनी है। Whose life you love to relive and come back? देखिए, ऐसे में एक का तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मैं जिनको अपना आइडल मानता हूँ। एक तो है स्वामी विवेकानंद, और दूसरे जो मैथ्स वंडर थे, रामानुजन। तो उन दोनों का मैं जरूर करना चाहूँ। Yes, आपने कहा भी, I would love to be a math teacher and physics teacher, so I can get the connection from there to here. Yes, sir, constructive criticism के बारे में कुछ कहना चाहिए? निंदा करना, अक्सर देखा गया छोटे बच्चों में, निंदा करे तो पॉजिटिव भी पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव करे तो भी फील हो जाते बच्चे, हर्ट हो जाते हैं कि वे ऐसे कैसे बोल दिए वो हमको, अपने भलाई के लिए बोले, वो चेंज करने के लिए, स्लाइट क्रिटिसिज्म बीइंग कंस्ट्रक्टिव। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, बीइंग एन एडल्ट? आईड लाइक टू आस्क यू। ओके, लेकिन देखिए, सपोज आप कहीं जा रहे हैं, दुनिया आपको पत्थर मार रही है, तो वो पत्थर का आपने आगे चट्टान नहीं बनानी, उस पत्थर से आपने पुल बनाना है, और ताकि उसके ऊपर से चले जाएं। ऐसे करना है आपको। और क्रिटिसिज्म तो जब तक आप हैं आपको रहेगा ही, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, तो वो अच्छा बुरा आपको सुनना है, और जो आपको सही लगता है वो करते जाना है। किसी के पास पावर नहीं है आपको अच्छा फील कराने की या बुरा फील कराने की, ये पावर आपके पास ही है। Yes, you said build a bridge, है ना sir? Build a Yeah. bridge, yeah. That's beautiful, my dear friends. How many stones are thrown at you? Build a beautiful bridge, cross over, and build a beautiful life. Very nice, a wonderful example.
सर, माफी के बारे में, जी दिस इज द लास्ट मेन क्वेश्चन, देन वी हैव द रैपिड फायर राउंड. आजकल हम लोग माफ नहीं कर सकते लोगों को. पहले जमाने में माफ कर देते, चलो माफ कर दिया. तो आज के जमाने में माफी किस हद तक एक इंसान को माफ कर सकते हैं? कितने बार माफ करना है किसी को? जितने बार माफ करते जाएंगे उतने बार वो इंसान दोबारा हमें हर्ट करते जाएगा, ये भी हमने जी जी. देखा. तो आपके सोच विचार इस पर. नहीं, वो आपको देखना है कि आप किस पर्सन से डील कर रहे हैं. वो आपको देखना पड़ेगा कि इसको माफ करना है कि नहीं, वो काम जो उसने किया माफी के वो है कि नहीं. बट जनरली मैं दूंगा कि आपको माफ कर देना चाहिए. हाँ, पर कुछ ऐसे कुछ किया जिसमें माफी वो नहीं बनती, तो दैट्स अप टू ये तो पर्सनल, एक हर किसी का पर्सनल वो होता है. आई थिंक पर्सनल पर्सपेक्टिव है. Yeah, great. That's really nice. A personal perspective. It depends who's the person you're forgiving. अगर जनरल व्यू में पूछा गया तो आप हाउ डू यू शेयर दैट जनरली? कितने बार एक इंसान को माफ कर सकते हैं? ये कितनी बार तो नहीं, मैं डिपेंड करता है उसने किया क्या है, क्या क्या काम किया है, उस पर डिपेंड करेगा. ये मैं जनरली आपको कह नहीं सकता. Yeah, it's a general situations. Situation, sir, says it's not a general situation. It's a personal one. So it depends on the personal level, how many times that person has hurt you. It's a very fair thought, and the way you're very careful in answering this question. I appreciate that. Sir, now we have the rapid fire round, which will take another 10 minutes. If you don't mind, I just take another 10 minutes. वो बहुत quick Okay. session होगा. Yeah. जी जी. Yeah, thank you so much. My dear friends, we had a wonderful time getting to know about the professional expertise of our eye surgeon, Dr. Chirag Bahuguna. We'll now get to know about his likes and dislikes. So you have to answer in one word or two words, maximum one sentence. It's a brief session. We go ahead. Your favorite breakfast? My favorite bread omelette. Yes. Among all the 12 months, your favorite month? October. Your favorite number? 9. The favorite day of the week? Saturday. The insect you don't like? Cockroach. Is it texting or calling? Calling. Tea or coffee? Tea. Indoor games or outdoor games? Outdoor games. You're a morning person or a night owl? Morning person. Salty, sweet, spicy food? Spicy. Life is all about money or happiness? Happiness. Are you an introvert, extrovert, or ambivert? I'm in between. Ambivert. When you're all alone with no gadgets around you, you're connected to your thoughts, no people around you too, and no books as well. You're just alone sitting on a chair. Where do your thoughts take you? Past, present, or future? Sometime past. Most of the time? Most of the time past. And Okay. sometime future also. 50-50. 50-50. Yeah. You like socializing or me time? Socializing. Beach or a forest? Forest. Song or dance? Song. Walking, two-wheeler or a four-wheeler? Walking. Reading or music? Both. Anyone? Then music. Favorite sweet, Indian sweet? Favorite Indian sweet is pinni. Oh, great. If it was cakes, chocolates, and ice cream, what would you select? I will chocolates. Your favorite season, sir? Favorite season? Spring. Is it the city, village, or town? Town. Your favorite mode of transport? Roadways, railways, waterways, airways? Railways. When you help others, maybe a patient who could not pay you back at the right time, maybe, or somebody who has taken some help from you and couldn't repay it, but still you expect something in return. What do you expect in that case? You know they can't give back something financially, but still what do you expect from that person? A smile? Respect and smile. Oh, sweet. Respect and smile. That's really nice. A beautiful day in one word. Happiness. Apart from being a great professional in the medical field as an eye surgeon, are you a great cook as well? Do you have this cooking skill, a life skill? Yes, I do cooking. I love cooking. Your favorite recipe? Biryani.
Great. Veg, non-veg? Non-veg. Okay, done, sir. The name of your favorite teacher? Mr. Balwant Singh Negi. Yes. Are you a thinker or a doer? First, I think, then I do. Experience or theory? Experiential learning or theoretical learning? Am I audible, sir? Am I audible? I guess there is a slight technical issue. We'll Yeah. wait for sir to join. Sir, am I Yeah. audible? Yeah. Yes, yes. I asked you, is it experiential learning or theoretical learning? Experience. If it was an apple or a samosa, what would you select? Apple. Apple. Did I ask you this? Are you an early bird or a night owl? Early bird. Early bird. Home cooked food or food ordered from out? Home cook. The most precious gift you received till date? What? Precious gift, तोहफा. आज तक सबसे बढ़िया तोहफा आपको जो मिला है उसका नाम? किसी का समय जो मुझे देता है अपना. That's the most precious gift. That's really nice. आपको तोहफा देना अच्छा लगता है सर या तोहफा मिलना? तोहफा देना. देना. तो आज हमारे लिए लास्ट एक छोटी सी काम कर दीजिए. हमें 3 तोहफे देने हैं आज सर आपको हमें. Before we end the session, you've already given us your time and all your expertise. But before we finally sign off from the International Fab Talks, we always given a small request, put in a small request to the celebrity who is here with us to share 3 magical words which would enable us to focus our journey further in our life. Apart from please, sorry, and thank you. इसके अलावा you can share any 3 words, either in Hindi or English. Okay, okay. One is perseverance, other is hard work, and third is positivity. Perseverance, hard work, and positivity are the 3 gifts we get from our celebrity. Sir, thank you so much. Looking forward to many more interactions with you. There are still so Thank many you. questions that I have to ask you, but I've taken a lot of time and I will not, take more advantage of your time. Thank you so much. Thank you for Thank being you. very polite. Thank you. Thank you, Thank sir. Thank you. Thank you, sir. My dear friends, with this, we come to an end to the International Fab Talks for today. If you'd like to connect with our celebrity and guest, he's an eye surgeon in Dehradun, Uttarakhand, India. You could connect with sir. We will share the details with you in our description below. You can connect with him. And of course, if you like this video and if you feel that this video should reach different people who really need to connect with an eye doctor, with an eye surgeon, as great as Dr. Chirag Bahuguna, please share the video with one and all. And if you like, subscribe and share and comment as well. We are here to help you to build a beautiful life. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.